So now we are continuing with equity evaluation. In the previous video, we covered bond evaluation. As mentioned earlier, we have discussed every formula, concept, and important practical problems in detail. So let us see if this will be the only revision series you will ever need. Now we are starting topic of equity valuation. So under major topic is security valuation. So in equity valuation, again, major topics are valuation of equity shares, return on equity, valuation of rights shares, valuation of buyback of shares, and valuation of convertibles. So first we are starting valuation of equity shares. So let us see what is meant by equity valuation. So equity valuation means to determine true value, which is also called intrinsic value of equity share. So this intrinsic value is denoted by V0 and this is also equal to present value of future expected benefits. So it means value of equity share is present value of future benefits. Benefits can be dividends, earnings, and sale price of share if a share is sold after some time period. And this is calculated at a required rate of return to investors. In case of equity, required return is also called KE. So it means we can say that value of equity is present value of future dividends and sale price of share at KE. First of all, let us start with valuation of equity. There are four metrics to determine value of equity. Number one is dividend discount model. As per this model, value of equity is present value of future expected dividends at required return. Second is our earnings yield model. As per this model, value of equity is earning per share times price earning ratio or present value of future expected earnings at required return. The number third is free cash flow for equity model. As per this model, value of equity is present value of future expected cash flow for equity at required return. So fourth is our realized yield model. So this model is applicable when share is held for a definite time period and value of equity is present value of dividends plus sale price of share at required return. So for this purpose, there are different models for valuation of equity. Like number one is a dividend discount model, then earnings yield model, free cash flow for equity model, and a realized yield model. So under dividend discount model, there are different cases. Number one, constant dividend model, constant growth model. It means when growth in dividend is constant. Then we have future value of share, multi-growth model, H model, and transition growth model. So first let us say constant dividend model. In case of constant dividend, what happens? You are given this is time scale, 0 time period, P0 purchase price of share is given, which may be market price or issue price. Then a company will pay dividend in future time periods. Normally equity is permanent capital of company, and this dividend per share, which is denoted as D1, D2, this one is equal every year. It means this is constant, and this will remain constant up to infinity. Required return is given which is KE. So what will be value share? Present value of dividends. Here dividend will become perpetuity. So present value is dividend divided by required return. So value share is V0 is equal to D upon KE. So this is a simple formula. The second is our constant growth model. So this is applicable when dividends are fluctuating. Then we have to calculate what is growth rate in dividends. Growth rate means what is percentage change in dividends. इसमें आप देखिए आपको डाटा मिल जाएगा, करंट पीरियड है, P0 आपको दिया है एंड डिविडेंड्स आपको दिए हैं, प्रेजेंटली कितना डिविडेंड है D0, देन फर्स्ट ईयर में कितना डिविडेंड होगा, सेकंड ईयर में. अब ये डिविडेंड आपका फ्लक्चुएट कर रहा है, पर इसमें जो ग्रोथ है वो आपकी कॉन्स्टेंट है. के आपको मेंशन की है, जी है आपकी ग्रोथ रेट, जी मीन्स परसेंटेज चेंज इन डिविडेंड. तो अब आपका एक फार्मूला बन जाएगा शेयर का. इसमें हम लेते हैं एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर कि नेक्स्ट ईयर में कंपनी कितना डिविडेंड पे करेगी, जिसको हमने डिनोट किया D1 से डिवाइड कर को KE माइनस जी. ये ओके नेट रिक्वायर्ड रिटर्न. जैसे KE आपकी सपोज चलो 12% है, पर आपको ग्रोथ मिल रही है 4%, तो हमें नेट रिक्वायर्ड रिटर्न चाहिए 12 माइनस 4 8%. तो इट मीन्स D1 की वैल्यू क्या है, करंट डिविडेंड कितना है D0, इसमें ग्रोथ ऐड कर लीजिए एक साल D1 प्लस जी अपॉन KE माइनस जी. तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में कई बार D0 दिया होता है, वो है करंट डिविडेंड पर शेयर,
और कई बार आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं दिया होता है गिवन विच इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर। तो गिवन जब दिया है तो उसमें ग्रोथ ऐड नहीं करेंगे हम, इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। इट मीन गिवन होता है आपका G0 into 1 plus growth. So sometimes growth rate is also missing and we have to calculate growth rate. Let us see what are different formulas to determine growth rate, which is calculation of growth. इसमें नंबर वन अप्रोच है आपकी हिस्टोरिकल अप्रोच। तो इसमें पास्ट ईयर के डिविजन्स आपको दिए होंगे तो उसको हम कंपेयर करते हैं। तो इट मीन जी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डिविजन से। तो आपका फार्मूला बन जाएगा डिविजन। ये एन जो है ये है हमारा लेटेस्ट डिविजन, G0 है हमारा सबसे पुराना डिविजन। इसमें देखो कितना टाइम गैप है, फिर आपने मल्टीप्लाई करना है G0 को 1 प्लस ग्रोथ से, एन हो गया आपका नंबर ऑफ पीरियड से। तो उसको सोल्व कीजिए एंड यू विल गेट वैल्यू ऑफ जी, वो आपकी ग्रोथ रेट आ जाएगी विच इज एवरेज ग्रोथ ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डिविजन से। तो सेकंड फार्मूला चलता है हमारा रिटेंशन रेशियो अप्रोच है। जैसे कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है उसमें से कितना डिविडेंड पे कर रहे हैं, कितना हम रिटेन कर रहे हैं। अब जो प्रॉफिट कंपनी रिटेन करती है उसको री इन्वेस्ट करती है, उसके ऊपर हमें रिटर्न मिल रही है इक्विटी की, उससे ग्रोथ रेट हमारी डिटरमिन होती है। फार्मूला है रिटेंशन रेशो कितनी है इनटू रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी है। रिटेंशन रेशो को हम जनरेट करते हैं स्मॉल बी से इनटू ROE। रिटेंशन रेशो होती है 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशो। इट मीन्स डिविडेंड पे आउट रेशो की 60%, सो रिटेंशन इज 40%। और उस 40% को जब आप री इन्वेस्ट करोगे बिजनेस में, उसके ऊपर आपको रिटर्न मिलेगी इक्विटी की, उससे आपकी ग्रोथ डिटरमिन हो जाएगी। और ROE का फार्मूला क्या है, प्रॉफिट अपॉन इक्विटी इनटू 100। और आप ये भी कह सकते हैं देखिए आप प्रॉफिट को डिवाइड करके हैं नंबर ऑफ शेयर से, इक्विटी को भी डिवाइड करके हैं नंबर ऑफ शेयर से। प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर बन जाएगा अर्निंग पर शेयर, इक्विटी पर नंबर ऑफ शेयर बन जाएंगे बुक वैल्यू पर शेयर। तो इट मीन्स कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन में देखा गया होता है पर शेयर, तो फार्मूला बन जाएगा ROE का EPS अपॉन बुक वैल्यू इनटू 100। तो अब डिस्कस करते हैं, एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं इसी कॉपी के बेस पे जिसमें हमारी ग्रोथ रेट कॉन्स्टेंट चल रही है या हमारी डिविडेंड कॉन्स्टेंट है। Now let us discuss one example on valuation of equity with constant growth model. So let us see data given in this example. So MM Investment Limited wants to invest its surplus funds in equity shares for different companies. It has collected the following information for different companies. So there are two companies are given. Number one is Asian Paints Limited. Second is Philips Electricals Limited. So first we have a data of Asian Paints Limited. It has paid a dividend of rupees 2.50 per share for the last year. Growth rate of dividend is 2% and determine the current value stock if required return, which is called discount rate, it is 10.5%. तो आपको करंट वैल्यू डिटरमिन करनी है शेयर की। एंड फर्दर इट इज गिवन डिटरमिन स्टॉक इज ओवर वैल्यूड और नॉट इफ स्टॉक प्राइस इज ₹35, ROE is 9% and EPS is ₹2.25। तो लेके से तो फर्स्ट केस देखते हैं। अब देखो आपको डाटा मेंशन किया है। तो एशियन पेंट्स लिमिटेड टाइम पीरियड 0 है, करंट डिविडेंड आपको मेंशन किया है 2.50, ग्रोथ रेट है आपकी 2%, तो ये कांस्टेंट है आपको इन्फिनिटी। और रिक्वायर्ड रिटर्न आपको दिया है इन्वेस्टर की KE 10.5%। इट मीन्स अब आप डिटरमिन कर सकते हैं करंट वैल्यू ऑफ स्टॉक विच इज B0। इसका फार्मूला है D0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ अपॉन KE माइनस G। तो डी नोट आपको दिया है विच इज करंट डिविडेंड 2.5, सो 2.5 में प्लस कीजिए आप ग्रोथ 1 प्लस 2% डिवाइडेड बाई KE 10.5% विच इज 0.105 माइनस ग्रोथ इज 2% 0.02। So this is 2.55 upon 0.085. So current value of share is coming ₹30. So further here asking we have to determine is stock overvalued if our ROE is given 9% and EPS is 2.25. तो आप देखिए when ROE is 9% and EPS is 2.25 and growth rate आपकी सेम रहेगी 2%। देन व्हाट इज ग्रोथ रेट, उसका फार्मूला है रिटेंशन इनटू ROE। तो इससे आप रिटेंशन रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपकी मिसिंग है। सो रिटेंशन ये ग्रोथ अपॉन ROE, ग्रोथ है आपकी 2%, ROE है 9%, सो दिस इज कमिंग 22.22%। ये आपकी रिटेंशन रेशो आ जाएगी क्योंकि इसमें EPS दिया है, डिविडेंड नहीं दिया है, वो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इससे डिविडेंड पे आउट आ जाएगी। तो डिविडेंड पे आउट रेशो है आपकी 1 माइनस रिटेंशन, तो 1 माइनस 22.22%, जिस इज 77.78%। तो उससे आपका डिविडेंड आ जाएगा विच इज करंट डिविडेंड। EPS है 2.25 इंटू 77.78%, सो डिविडेंड ये कमिंग ₹1.75।
अब आप डिटर्मिन कर सकते हैं करंट वैल्यू ऑफ शेयर वी नोट जिस इज इक्वल टू डी नोट इंटू वन प्लस ग्रोथ अपॉन के माइनस जी। डी जीरो है 1.75 इंटू वन प्लस ग्रोथ 1.02, के सेम है आपकी 10.5% माइनस ग्रोथ। तो दिस करंट वैल्यू इज कमिंग ₹21। अब आपको चेक करना है कि इज स्टॉक ओवर वैल्यू, इफ स्टॉक प्राइस इज ₹35 है तो आप देखिए कंपेयर कीजिए। सो सिंस करंट प्राइस ऑफ शेयर पी नोट इज 35, दिस इज मोर देन इंट्रिंसिक वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की है वी नोट ₹21, so we can say that share is overvalued, so it means investor should not buy this stock। तो सेकंड डाटा देखिए, सेकंड डाटा अब आपका है इसमें फिलिप्स इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। सो इट हैज करंट बुक वैल्यू पर शेयर ₹137.80, इट्स ROE इज 15% एंड इट फॉलोज ए पॉलिसी ऑफ रिटेनिंग 60% ऑफ इट्स अर्निंग्स एंड इफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 18%, बट विल बी द प्राइस ऑफ शेयर टुडे। इसमें आप देखिए फिलिप्स इलेक्ट्रिकल्स में आपको डाटा मेंशन किया है जीरो पीरियड में। बुक वैल्यू दी है आपको पर शेयर 137.80, ROE है 15%, रिटेंशन रेशो है आपकी 60% और कई दी है आपको रिक्वायर्ड रिटर्न विच इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, किसी रिक्वायर्ड रिटर्न 18%। तो उससे स्टार्ट करके हैं तो आप देखिए अब ROE का फार्मूला होता है हमारा प्रॉफिट अपॉन इक्विटी इंटू 100। देखिए आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर से तो वो भी सेम रहेगा, तो प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर बन जाएगा EPS, इक्विटी अपॉन नंबर ऑफ शेयर बन जाएगी बुक वैल्यू पर शेयर। तो इट मीन्स ROE का फार्मूला है EPS अपॉन बुक वैल्यू पर शेयर इंटू 100। अब आपके पास देखो ROE भी है तो बुक वैल्यू भी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपकी EPS आ जाएगी। EPS is बुक वैल्यू इंटू ROE, बुक वैल्यू है 137.80, ROE है 15%, सो दिस इज कमिंग 20.67 है। अब आपको रिटेंशन रेशो भी दी है 60%, इससे आपकी आ जाएगी डिविडेंड पे आउट रेशो, इट मीन्स 40%। तो इट मीन्स अब आपकी ग्रोथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम, रिटेंशन इंटू ROE, रिटेंशन है 60%, ROE है 15%, जिसे कमिंग 9%। एंड वट इज डिविडेंड, डिविडेंड आ जाएगा EPS इंटू BP रेशो, EPS है 20.67, BP रेशो है आपकी 1 माइनस रिटेंशन रेशो विच इज 40%, सो डिविडेंड ये 8.26 से 8। तो अच्छा पॉइंट है इसमें ROE और बुक वैल्यू का। नाउ यू कैन कैलकुलेट करंट वैल्यू ऑफ शेयर। तो करंट प्राइस ऑफ स्टॉक वी नोट जीरो इंटू वन प्लस जी अपॉन के माइनस जी, सेम फार्मूला है। जी जीरो है आपका 8.268, ग्रोथ है आपकी 9%, 1.09 अपॉन के आपको दी है 18% माइनस ग्रोथ 9%, तो दिस इज 9.012 डिवाइडेड बाय 0.09, सो करंट वैल्यू ऑफ शेयर इज कमिंग ₹100.135। पर क्योंकि और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर कर रखे हैं MCQ बेस्ड ऑन केस सिनेरियो में, जिसकी सेपरेट प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है। नेक्स्ट लेट अस सी अवर थर्ड मेथड। So this is related with our expected future value of a share. So we are saying that like in zero time period we are given current price of share, current dividend is given and growth is given which is constant from first year up to infinity. And we know that current value of share we note is equal to given upon k minus g. It means यदि आपको जीरो पीरियड में वैल्यू कैलकुलेट करनी है सो वी टेक डिविडेंड ऑफ नेक्स्ट ईयर विच इज अवर फर्स्ट ईयर इन दिस केस। तो इसी फार्मूले के बेस पर हम किसी भी साल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं विच इज कॉल्ड फ्यूचर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ शेयर। फॉर एग्जांपल आपको कैलकुलेट करनी है वैल्यू शेयर आफ्टर 5 ईयर, इट मीन्स 5 है तो आपको लेना है डिविडेंड ऑफ नेक्स्ट ईयर विच इज अवर 6th ईयर। तो आपका बेसिक फार्मूला सेम रहेगा, फार्मूला बन जाएगा D6 अपॉन के माइनस ग्रोथ। अब D6 आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये है D0 करंट डिविडेंड, उसमें 6 ईयर की ग्रोथ ऐड कर लीजिए इंटू 1 प्लस जी फॉर 6 ईयर डिवाइडेड बाई के माइनस जी। तो इट मीन्स कॉमन फार्मूला बन जाएगा 5 को हम शो कर सकते हैं वैल्यू एट द एंड ऑफ MX टाइम पीरियड। तो डिविडेंड आपको लेना है M+1 मीन्स नेक्स्ट ईयर का एक साल आगेगा डिवाइडेड बाई के माइनस जी। तो फोर्थ केस है आपका किसी मल्टी ग्रोथ मॉडल है। तो अभी जैसे आपने सेकंड केस में देखा या थर्ड केस में कि ग्रोथ हमारी कांस्टेंट रहती है अप टू इन्फिनिटी, बट सम टाइम ग्रोथ आल्सो फ्लक्चुएट्स। फॉर एग्जांपल देखो हमने टाइम स्केल बनाया है, जीरो पीरियड है, करंट प्राइस है P नो, डिविडेंड आपको दे रखा है करंट डिविडेंड। सपोज कर लीजिए 3 साल तक ग्रोथ है आपकी 15%, फिर नेक्स्ट 3 to 6 ईयर ग्रोथ हो जाती है आपकी 10%, और एक टाइम आएगा जब ग्रोथ आपकी कॉन्स्टेंट हो जाएगी। ये है आपका 7 से लेके इन्फिनिटी ग्रोथ आपकी कॉन्स्टेंट होगी 6%। तो इसमें जब ये ग्रोथ जो चेंज हो रही है आपकी, जब तक ये चेंज हो रही है जिसे कहा गया M, उसको हम M से डिनोट करते हैं। M है हमारा पीरियड ऑफ एबनॉर्मल ग्रोथ।
और ये जो इनिशियल ग्रोथ्स हैं 15%, 10%, जब तक ये कांस्टेंट नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का अब नॉर्मल ग्रोथ, इसको हम डिनोट कर रहे हैं GA से, और जो नॉर्मल ग्रोथ है वो है GN, नॉर्मल ग्रोथ। अब आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक फार्मूला यही है, वैल्यू शेयर V नॉट इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड्स एट KE। तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है अपने सभी फ्यूचर डिविडेंड्स की। अब इसके लिए आप एक टेबल ड्रॉ कर लीजिए। तो ईयर्स हैं देखो आपके 1 से लेके आपने M तक शो करने हैं जितने भी टाइम दिए है, 6 ईयर हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6। फिर इस 6 ईयर में हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सभी फ्यूचर डिविडेंड 7 टू इन्फिनिटी की। ये है हमारी कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। तो कांस्टेंट ग्रोथ वाला मॉडल अप्लाई हो जाएगा, उसकी वैल्यू 6 ईयर में आ जाएगी। तो इट मीन्स अब आप टेबल में मेंशन कीजिए डिविडेंड्स हैं फर्स्ट 6 ईयर के, G1, G2, G3, G4, G5, G6। ये बन जाएगा G0 में पहले आप ग्रोथ ऐड कीजिए 15% 3 साल का, उसके बाद फिर 10% ऐड हो जाएगी ग्रोथ। तो ये डिविडेंड्स आ गए आपके। फिर 6 ईयर जो हमारा अब नॉर्मल ग्रोथ पीरियड है उसके एंड में आपको मिलेगी वैल्यू ऑफ MX टाइम पीरियड, जिसे जस्ट लाइक फ्यूचर वैल्यू ऑफ शेयर। तो इसमें आपको चाहिए डिविडेंड 7th ईयर का, तो ये बन जाएगा, ये को D6 आ गया आपके पास, उसमें ग्रोथ ऐड कर दो नॉर्मल ग्रोथ नेक्स्ट ईयर की, ये D7 बन गया, डिवाइड करो कई महीने की, ये वैल्यू आ गई आपकी 6th ईयर में, जिसको हमने डिनोट किया है M से। अब आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट KE फॉर 6 पीरियड, मल्टीप्लाई करके डिविडेंड्स और आपकी टोटल वैल्यू आ जाएगी विच इज समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड्स इज इक्वल टू करंट वैल्यू ऑफ शेयर। ये जो मल्टी ग्रोथ मॉडल है इसी का शॉर्टकट मेथड है जिसे कहा गया H मॉडल। तो नंबर 5 केस है हमारा H मॉडल, जिसे शॉर्टकट फॉर मल्टी ग्रोथ मॉडल। अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको सेम मिलेगी, क्वाइट ईजी है। आप देखिए सेम डाटा हमने लिया है, करंट 0 है, टाइम पीरियड है 0, पीरियड में डिविडेंड दे रखा है 3 साल है, फिर 6 ईयर है, 7 की ग्रोथ हमारी कॉन्स्टेंट हो रही है। पहले 3 साल में ग्रोथ है नॉर्मल 15%, फिर 10% है, और नॉर्मल ग्रोथ है 6%। तो इसमें एच का मतलब जो होता है, एच होता है हाफ ऑफ ए नॉर्मल ग्रोथ पीरियड। अब नॉर्मल ग्रोथ पीरियड हमने एम से डिनोट किए हैं, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है, वैल्यू शेयर है D0, उसमें पहले हम ऐड कर रहे हैं 1 प्लस नॉर्मल ग्रोथ प्लस एच शो कर रहा है, हाफ का मतलब है एवरेज बेसिस है, आपको एक्स्ट्रा ग्रोथ कितनी मिलेगी है। तो आपने लेना है एच इंटू जी ए लेंगे हम, जो सबसे पहले वाली है अब नॉर्मल ग्रोथ, माइनस GN। तो इसका मतलब ये है कि ये डिफरेंस जो आ रहा है ये हमारी एक्स्ट्रा ग्रोथ हमें मिल रही है उन्हें एवरेज बेसिस के ऊपर 6 ईयर की, उसको हमने कर दिया X से मल्टीप्लाई, इतने कितने टाइम की मिल रही है उन्हें एवरेज बेसिस, देखिए M/2, उसको डिवाइड कर दो KE माइनस GN से। तो ये भी आपकी वैल्यू आ जाएगी शेयर की। अप्रोक्सीमेट आंसर सेम आएगा जो हम प्रेजेंट वैल्यू मेथड अप्लाई करके मल्टी ग्रोथ मॉडल में। तो 6 लेते हैं, 6 है हमारा ट्रांजिशन ग्रोथ मॉडल, जिसे मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। इसमें देखिए, इसमें आपको जैसे ही शो किया है मल्टी ग्रोथ मॉडल है, 0 टाइम पीरियड है, पहले 3 साल ग्रोथ है 15%, फिर नेक्स्ट 3 साल में ग्रोथ आपकी 9% हो गई है, और 7% की ग्रोथ कॉन्स्टेंट हो गई है। इसमें जो बीच वाली स्टेज है ना आपकी 3 to 6, इसको कहते हैं ट्रांजिशन पीरियड। इस पीरियड में क्या होता है, जो ग्रोथ में चेंज आ रहा है 15% से लेकर 9%, ये हमारा लीनियर चेंज आता है, कॉन्स्टेंट चेंज एवरी ईयर। तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे, उसका फार्मूला है चेंज इन ग्रोथ कितना है पर एनम। तो आपने लेना है ग्रोथ में कितना चेंज आया, 9 माइनस 15, बल्कि 6% फॉल होगी ग्रोथ, डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम कितना है 6 माइनस 3। इसका मतलब है -6/3 पर एनम जो चेंज आ रहा है -2%। तो इट मीन्स लीनियरली हर साल हमारी ग्रोथ जो है वो फॉल कर रही है 15 से बाई 2% एवरी ईयर। फिर आपको एक टाइम स्केल या टेबल ड्रॉ करना है, तो आप देखो ग्रोथ मेंशन करो। पहले 3 साल को आपकी 15% की रहेगी, अब उसमें से 2% माइनस करो अप टू 6 ईयर। 15 माइनस 2 जिसे 13%, माइनस 2 11%, माइनस 2 9%। तो 6 ईयर में 9% आएगी। उसके बाद आपकी कॉन्स्टेंट हो गई है 6% फ्रॉम 7 टू इन्फिनिटी। इट मीन्स अब आपकी ग्रोथ देखो चेंज हो रही है 13, 11, 9, ये हो गया ड्यूरिंग ट्रांजिशन पीरियड। बस अब आपको टेबल ड्रॉ करना है, डिविडेंड्स कैलकुलेट हो जाएंगे ऐसे जैसे अभी मल्टी ग्रोथ मॉडल में किया था। फिर उसकी कैलकुलेट करो प्रेजेंट वैल्यू है कि वो आपकी आ जाएगी वैल्यू ऑफ शेयर, दिस इज समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड्स है कि KE। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अब एग्जाम्पल डिस्कस करके हैं, उसके आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नाउ लेट अस सी एग्जाम्पल ऑन मल्टी ग्रोथ मॉडल।
So data given in this example is so JP Investment Limited wants to invest in equity shares of different companies. For this purpose, it wants to determine value of equity share of some companies. The details of which are as follows. तो आपको डिटेक्टिंग करनी है वैल्यू ऑफ शेयर से। तो फर्स्ट डाटा है आपके पास बर्गर पेंट्स लिमिटेड। सो अर्निंग ₹7 पर शेयर ड्यूरिंग द लास्ट ईयर एंड पेड डिविडेंड ₹2.50 per share. The earnings are expected to grow at the rate of 10% for the next 3 years and thereafter stabilize at 3%. Payout ratio is expected to remain at same level during the 3 years and then it will increase to 60%. तो आपको अर्निंग पर शेयर की है, आपको डिविडेंड पर शेयर किया है, करंट ग्रोथ आपको मेंशन की है। पहले 3 साल है आपकी 10%, उसके बाद आपकी कांस्टेंट हो जाएगी 3% और डिविडेंड पे आउट रेशियो इसमें चेंज हो रही है। आफ्टर 3 ईयर इट विल बिकम 60%। And if required rate of return is 16%, we have to compute expected price of this company at the end of 3rd year. तो पहले आपको डिटरमिन करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू शेयर एट द एंड ऑफ 3rd ईयर एंड व्हाट इज द करंट प्राइस ऑफ स्टॉक, और आपको करंट प्राइस भी डिटरमिन करना है। तो लेट्स से इसका डाटा देखते हैं। तो बर्गर पेंट्स लिमिटेड आपको डाटा मेंशन किया है, टाइम पीरियड 0 है, करंट EPS 7 रुपीज़, करंट डिविडेंड है 2.5 और अप टू 3 ईयर्स ग्रोथ है हमारी 10%। आफ्टर 3 ईयर 4 को इन्फिनिटी ग्रोथ हो जाएगी 3%। बट इन फ्रॉम 4th ईयर डिविडेंड पे आउट रेशियो विल बिकम 60%। तो आपको कई दे रखी है 16%। तो अब आपको पहले डिटरमिन करनी है वैल्यू शेयर एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। उसके लिए आपको चाहिए डिविडेंड ऑफ 4th ईयर। उसका देखो हमने टेबल ड्रॉ किया है, ईयर 1 2 3 4। अर्निंग पर शेयर आपकी 7 है, उसमें ग्रोथ ऐड करो 10%। पहले 3 साल की 7.7, 8.47, 9.317। अब इसमें ग्रोथ ऐड करनी है अपनी 3%। सो EPS विल बिकम फॉर 4 के 9.6। अभी GP रेशो हमारी सेम है पहले 3 साल। तो इसका मतलब जो डिविडेंड है 2.5 उसमें भी ग्रोथ ऐड कर दो 10%। तो पहले 3 साल का डिविडेंड आ जाएगा 2.75, 2.5 प्लस 10%, 2.75 प्लस 10% ऐड किया 3.025 एंड 3.33। बट इन 4th ईयर अब जो EPS आई है आपकी 4th ईयर की उसका ग्रोथ 60%। तो वो डिविडेंड पे आउट रेशो चेंज हो गई है। तो आपका डिविडेंड आ जाएगा 4th ईयर का 5.76। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू इन 3rd ईयर में। फार्मूला है डिविडेंड ऑफ 4th ईयर अपॉन कई माइनस ग्रोथ। डिविडेंड है 4th ईयर का 5.76 अपॉन कई है 16% माइनस ग्रोथ है 3%। तो दिस वैल्यू की 5.76 अपॉन 0.13 दिस इज ₹44.31। ये है आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू शेयर एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। अब आपको कैलकुलेट करने हैं करंट वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ बर्गर पेंट लिमिटेड। करंट वैल्यू है आपकी V0 जिस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड्स। और फर्दर जो 4 को इन्फिनिटी है उनकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 3rd ईयर में। तो जिसे कहा कि V3, तो V3 आपके पास पहले ही है 44.31। तो डिविडेंड्स हैं आपके 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर। और जो 3rd ईयर में वैल्यू है विच रिप्रेजेंट से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड फ्रॉम 4 को इन्फिनिटी। तो उन सबको मल्टीप्लाई करते हैं PV फैक्टर एट के है आपका 16%। तो PV फैक्टर फॉर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स मल्टीप्लाई कीजिए डिविडेंड से एंड वैल्यू को। तो दिस वैल्यू कमिंग 35.16 है, जिसे करंट वैल्यू ऑफ शेयर। अब इसमें सेकंड पार्ट पे आपको दिए हैं जैसे कि जैग लिमिटेड। तो जैग लिमिटेड की फोरकास्टिंग है ग्रोथ रेट ऑफ 12% पर एनम इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स। ग्रोथ रेट इज लाइकली टू फॉल टू 10% फॉर 3rd एंड 4th ईयर एंड आफ्टर दैट ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू स्टेबलाइज आएगा 8%। तो ये मल्टी ग्रोथ मॉडल है। तो पहले 2 साल की ग्रोथ है आपकी 12%, फिर नेक्स्ट 2 ईयर की 10% और उसके बाद कॉन्स्टेंट हो जाएगी 8%। इफ लास्ट डिविडेंड पेड बाय ₹1.50 पर शेयर एंड इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रिटर्न इज 16%, find the intrinsic value share of JAG Limited, and we are given present value factors are given at 16% for 1 year, 2, 3 and 4 year, 0.86, 0.74, 0.64, 0.55। तो देखते हैं डाटा ड्रॉ करते हैं। जैग लिमिटेड 0 पीरियड में करंट डिविडेंड है 1.50। पहले 2 साल की एब्नॉर्मल ग्रोथ है 12%। नेक्स्ट 2 ईयर से 3rd एंड 4th की ग्रोथ है आपकी 10%। 5th से इन्फिनिटी का ग्रोथ आपकी कॉन्स्टेंट हो जाएगी 8%। रिक्वायर्ड रिटर्न कई दी है 16%। वैल्यू शेयर है आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड्स। तो टेबल ड्रॉ करते हैं ईयर 1 2 3 4 और जो 4th ईयर है हमारा पीरियड ऑफ एब्नॉर्मल ग्रोथ उसके एंड में वैल्यू आएगी V4। तो डिविडेंड्स हैं आप देखो 1.5 में प्लस करो 12%, देन अगेन 12% ऐड करो 1.68 में, ये बन जाएगा 1.88। तो अब आपने ऐड करना है 10% फॉर 3rd ईयर, अगेन 10% फॉर 4th ईयर।
ये डिवीजन आ गया 4th ईयर का, उसमें ऐड करो ग्रोथ ऑफ 5th ईयर की 1.08, ये बन गया डिवीजन को 5th ईयर, उसको डिवाइड किया कई माइनस जी से, वो आपकी आ गई वैल्यू इन 4th ईयर, जिसे 30.74 मल्टीप्लाई कर गो पी वी फैक्टर आपको दिए ये क्वेश्चन में कई 16%, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर खा गया 4th ईयर, और ये भी आपका सेम अप्लाई होगा 4th ईयर का। तो करंट वैल्यू शेयर 22.32। So third case they are asking determine value share of Z limited as per data given above by applying H मॉडल। अब अपने Z लिमिटेड जो मल्टी ग्रोथ मॉडल है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है यूजिंग H मॉडल। तो लेके से थर्ड केस में Z लिमिटेड हम कैलकुलेट कर रहे हैं वैल्यू शेयर बाय अप्लाइंग H मॉडल। वैल्यू शेयर का फॉर्मूला है G0 इंटू 1 प्लस नॉर्मल ग्रोथ प्लस H होता है हमारा एबनॉर्मल जो ग्रोथ का जो पीरियड है उसका करना है अपने एवरेज। इट मीन्स H की जो वैल्यू है H इज इक्वल टू M/2 इनटू एबनॉर्मल ग्रोथ लेनी है सबसे पहले वाली माइनस नॉर्मल ग्रोथ होती है लास्ट वाली अपॉन कई माइनस जी एन। पुट करके वैल्यू देखो D0 है 1.5, नॉर्मल ग्रोथ है 8% 1.08, एच बन गया 4/2, एबनॉर्मल ग्रोथ सबसे पहली है 12% 0.12 माइनस नॉर्मल ग्रोथ है 0.08। सॉल्व कर लीजिए जिसे 0.12 माइनस 0.08 0.04 इंटू 2 0.08, सो जिसे 1.5 इंटू 1.08 प्लस 0.08 अपॉन कई माइनस जी 0.16 माइनस 0.08 की 0.08। सो जिस न्यूमेरेटर कमिंग 1.5 इंटू 1.16 अपॉन 0.08 वैल्यू आ रही है आपकी 21 रुपीज़ 75 पैसा। तो आपने देखा जैसे दोनों मैसेज में वैल्यू में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस आपको मिलेगा मैक्सिमम आपको 1 रुपीज़। ये हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया है ऑन द बेसिस मल्टी ग्रोथ मॉडल। So now let us see one example on a transition state growth model. So let us see data given in this example. So an investor is considering to purchase equity share of Alpha Limited, so whose current market price CMP is given 172.45. The company is proposing a dividend of ₹6 for the next year. So expected dividend is given for next year ₹6, and Alpha Limited is expected to grow at the rate of 20% per annum for the next 4 years. So next 4 years growth rate is given 20%, and thereafter the growth over the next 3 years, so over transition stage will decline linearly by 100 basis points per annum. फिर आपको मेंशन किया है कि अब आपकी नेक्स्ट 3 साल के लिए आपकी ट्रांजिशन स्टेज स्टार्ट हो जाएगी जिसमें अब ग्रोथ रेट जो है आपकी डिक्लाइन होगी लीनियरली बाय 100 बेसिस पॉइंट पर एनम। 100 बेसिस पॉइंट मीन्स 1% पर एनम। सो देयर आफ्टर इट विल स्टेबलाइज एट ए सर्टेन ग्रोथ रेट पर एनम इनफाइनाइटली। फिर उसके बाद आपकी जो ग्रोथ रेट है ये कांस्टेंट हो जाएगी और वो हमें मेंशन नहीं किया है, सर्टेन ग्रोथ रेट। Investors required return is given 20% per annum. So you are to calculate the stable growth rate of Alpha Limited after the end of 7 years. तो आपको ये लिखना है कि कितनी स्टेबल ग्रोथ रेट है हमारे आफ्टर 7 ईयर। तो लेके से डाटा जो हमने ड्रॉ किया है करंट टाइम पीरियड है, आपको करंट मार्केट प्राइस दिया है शेयर का पी नोट जिसे 172.45, नेक्स्ट 4 ईयर की ग्रोथ रेट है आपकी 20% पर एनम, और डिविडेंड आपको ऑलरेडी मेंशन किया है फर्स्ट ईयर का विच इज एक्सपेक्टेड डिविडेंड विच इज डिविडेंड ऑफ नेक्स्ट ईयर 6 रुपीज़। फिर आपकी अब आफ्टर 4 ईयर 3 साल के लिए 5, 6, 7 आपकी ट्रांजिशन स्टेज स्टार्ट हो जाएगी। उसमें मेंशन किया कि जो चेंज इन ग्रोथ है वो है आपकी 100 बेसिस पॉइंट डिक्लाइन हो जाएगी, इतनी 1% डिक्लाइन होगी। तो 20 में से आप 1% लेस करके जाइए 3 सालों के लिए, तो ये ग्रोथ आ जाएगी आपकी 20 माइनस 1 19%, देन 18%, देन 17%। So after 7 year it means from air to up to infinity ग्रोथ आपकी स्टेबल हो जाएगी। स्टेबल ग्रोथ आपकी मिसिंग है लेटेसी जैसे कि जी विच इज मिसिंग। तो अब आप अप्लाई कीजिए फार्मूला कि ये आपको मेंशन की है 20% पर एनम। सो व्हाट इज करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर में करंट वैल्यू शेयर की प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड्स। तो अप टू 7 ईयर जो ग्रोथ है आपके पास, तो आप डिविडेंड कैलकुलेट कीजिए फॉर 7 ईयर 1 2 3 4 5 6 7 डिविडेंड्स हैं 6 रुपीज़, प्लस कर दिया मैंने 20% फॉर सेकंड ईयर, देन फॉर थर्ड ईयर आल्सो 20%, देन अप टू 4th ईयर 20% ग्रोथ ऐड होगी आपकी। उसके बाद ग्रोथ आपने ऐड करनी है 19%, फिर आपने ऐड करनी है 18%, देन इट इज 17%। तो इस तरीके से डिविडेंड आ जाएगा आपका अप टू 7th ईयर। अब आपको पता है जब ग्रोथ कॉन्स्टेंट हो जाती है फ्रॉम एट टू इन्फिनिटी, तो इन सब की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7th ईयर में, जिसको हम कहते हैं V7। तो इसका फार्मूला है डिवीजन को 7th ईयर प्लस ग्रोथ कितनी होगी नेक्स्ट ईयर की विच इज ऑफ 8th ईयर, ये मिसिंग है आपकी।
सो इनको 1 प्लस जी अपॉन कई माइनस जी, कई आपको दिया है 20%। अब आप अप्लाई कीजिए, पीवी फैक्टर आपको दिया ही है ऑलरेडी क्वेश्चन में, कई है कि 20%, 0.833, ये आपके हैं 7 ईयर के, एंड दिस वैल्यू इन 7th ईयर, सो पीवी फैक्टर इज सेम फॉर 7th ईयर, 0.279। तो अब अप्लाई करते हैं हम फार्मूला हमने। नाउ करंट प्राइस ऑफ शेयर P0 इज टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड्स। करंट प्राइस है 172.45। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, जो पहले 7 ईयर के डिविडेंड्स हैं इन सब की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी अप टू 7th ईयर। तो ये हमने कैलकुलेट कर दिया 34.59। फिर जो लास्ट ईयर की वैल्यू है V7, ये उसको मल्टीप्लाई करना है हमने 0.279 से, विच इज दिस वन 17.04 इंटू 1 प्लस ग्रोथ अपॉन कई माइनस ग्रोथ इंटू पीवी फैक्टर फॉर 7th ईयर। तो दिस विल गो हेयर, माइनस हो जाएगा, इसको डिवाइड कर लीजिए 0.279 से, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इनटू 0.20 माइनस जी इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट ओपन कर लीजिए 17.04 प्लस 17.04 जी। तो उसको डिवाइड किया हमने, इट इज कमिंग 494.122 इंटू 0.20 माइनस ग्रोथ इज इक्वल टू दिस वन। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, इनटू 0.20 माइनस 494.122 ग्रोथ इज इक्वल टू दिस वन। तो दिस विल गो ऑन दिस साइड, ये ऐड हो जाएगा और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। Then we get to growth rate. So this is coming 81.784 divided by 511.162, which is 0.16. So this is our in percentage. So this growth rate is 16%. देखा आपका ट्रांजिशन जब स्टेज आती है उस केस में आपको इक्विटी वैल्यूएशन कैसे डिटरमिन करनी है। तो ये रिवर्स क्वेश्चन था जिसमें ग्रोथ मिसिंग है, वैल्यू आपको दी है। अब इन्होंने फर्दर इन्होंने पूछा है, वी हैव टू एडवाइज वेदर इट विल वर्क टू परचेज शेयर एट दिस प्राइस इफ इन्वेस्टर हैज ए स्टेबल टारगेट ग्रोथ रेट ऑफ 15%। इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट है कि इसको जो स्टेबल ग्रोथ है वो मिलनी चाहिए टारगेट 15%, पर हमारी एक्चुअल ग्रोथ ज़्यादा है 16%। जितनी ग्रोथ ज़्यादा होगी उतनी वैल्यू इंक्रीज होगी। So since actual stable growth is 16% more than target growth rate of 15%, so current market price है जो अंडर प्राइस है, so it means investor should buy the share। ये आपका डिसीजन आ जाएगा, मीन्स एडवाइस क्या है आपकी, इन्वेस्टर शुड बाय द शेयर। नेक्स्ट वी हैव सेवंथ मेथड इन वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी। So this one is our earnings model. So as per this model, value of equity share is determined on the basis of earning per share, which is also called EPS. So normally this method is applied when dividends are not available. So we are given only earnings, not dividends. So there are different cases. Number one case is current value share is what is current EPS into price earning ratio. और वी कैन आल्सो अप्लाई वैल्यू शेयर इज EPS अपॉन के। EPS को आप कैपिटलाइज कर सकते हैं तो कहोगे अर्निंग पर शेयर इज कॉन्स्टेंट। नॉर्मल एजम्पशन है कि ये आपकी कॉन्स्टेंट है, बट इफ देयर इज ए चेंज इन अवर EPS ईयर टू ईयर, सो देन समटाइम दे आस्क व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्यूचर वैल्यू ऑफ शेयर। किसी केस भी then we can determine value share after m time period. But EPS at that time period means EPS of mx time period into price earning ratio. And EPS will be equal to current EPS into 1 plus growth in EPS for m time period into price earning ratio. So one more case is we can also determine what is value of growth opportunities. It means इसको हम डिनोट करते हैं VG से, सो इट रेफर्स टू इंक्रीज इन वैल्यू शेयर ड्यू टू ग्रोथ। अब आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, यदि आपकी ग्रोथ हो रही है, यदि ग्रोथ नहीं हो रही है। तो ग्रोथ होने से आपको कितना बेनिफिट हो रहा है, कितनी इंक्रीज हो रही है शेयर की वैल्यू में, उसको हम कहते हैं वैल्यू ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। तो दिस इक्वल टू वैल्यू शेयर विद ग्रोथ माइनस वैल्यू शेयर विदाउट ग्रोथ। तो पहले देखते हैं कि यदि आपकी कोई ग्रोथ नहीं है, सो इट मीन व्हेन देयर इज नो ग्रोथ, इट मीन ग्रोथ इज 0%। बट वी नो दैट ग्रोथ इज इक्वल टू रिटेंशन रेशियो इनटू ROE। रिटेंशन रेशियो आपकी B इनटू ROE। तो इट मीन्स जब ग्रोथ 0 है, इट मीन्स B रिटेंशन आपकी 0% है एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 100%। तो उस केस में क्या होगा, तो आपका जो डिविडेंड है वो EPS के इक्वल हो जाएगा। एक में जितनी EPS है और वही आपका डिविडेंड बन जाएगा। तो आपका फार्मूला बन जाएगा वैल्यू ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ में, जैसे जो वैल्यू हमने लेनी है विद ग्रोथ, तो ये है G0 इनटू 1 प्लस ग्रोथ अपॉन कई माइनस जी। और वैल्यू विदाउट ग्रोथ में क्या है, डिविडेंड और EPS सेम है, तो दिस विल बी माइनस EPS अपॉन के। तो दिस इज कॉल्ड वैल्यू ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एंड दिस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। So then we have air space is free cash flow for equity vehicle.
जिसे आंसू कहा गया FCFE मॉडल। तो उसमें हम डिविडेंड की जगह कैलकुलेट करते हैं फ्री कैश फ्लो कितना मिल रहा है इक्विटी के लिए पर शेयर के बेस पर। जैसे आपके पास EPS है, ये प्रॉफिट पर शेयर है, उसमें नॉन कैश एक्सपेंसिव ऐड कर लीजिए, माइनस जो कैश हमने पे कर दिया है वो माइनस कर देते हैं। तो प्लस देखो डेप्रिशन ऐड हो जाएगी, माइनस जो आपने एसेट्स के ऊपर कोई एक्सपेंडिचर किया है जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं वो लेस हो जाएगा। ये सब पर शेयर के बेस पे निकालेंगे, माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ये सारा पर शेयर है। और इसमें कई बार होता है कुछ हम डेट यूज करते हैं, कुछ हमारी इक्विटी है, तो इसमें से डेट का जितना प्रपोर्शन है वो माइनस कर दीजिए, तो ये बन जाएगा इनटू 1 माइनस डेट रेशो। तो इसको हम इस तरीके से मेंशन कर रखे हैं। तो EPS में से मैंने माइनस का साइन बाहर कर दिया है, तो ये माइनस चेंज इन फिक्स्ड जैसे जो था ये प्लस बन गया है, और ये डेप्रिशन का साइन बन गया माइनस में, और चेंज इन वर्किंग कैपिटल बन गया प्लस साइन। तो इसमें हम माइनस कर रहे हैं, नेट आउटफ्लो कितने हैं। तो जब फिक्स्ड एसेट्स में से आप डेप्रिशन माइनस कर दोगे इसको हम कहते हैं नेट कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आप डायरेक्टली नेट कैपेक्स भी ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म चलती है कैपेक्स से। तो इट मीन जितना आपने एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट किया है और प्लस जो वर्किंग कैपिटल में ये हमारा आउटफ्लो हो रहा है, इनमें से जितना डेट है प्रोपोर्शन वो लेस कर दो। डेट रेशो होती है डेट कितना परसेंट है टोटल कैपिटल में, टोटल कैपिटल है डेट प्लस इक्विटी। तो ये बैलेंस आ जाएगा कि जो इक्विटी का प्रपोर्शन है वो इसमें कितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है इक्विटी का, वो आउटफ्लो बन जाएगा। ये माइनस कर देंगे, बैलेंस आ जाएगा आपको फ्री कैश फ्लो हमें पर शेयर के बेसिस पे कितना मिल रहा है। अब आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं शेयर की, यदि आपका FCFE कॉन्स्टेंट है, फिर सिंपल फार्मूला है वैल्यू शेयर है FCFE डिवाइडेड बाई KE। और यदि आपकी FCFE में कुछ ग्रोथ चल रही है, कॉन्स्टेंट ग्रोथ है, फार्मूला बन जाएगा FCFE इन 0 पीरियड इनटू 1 प्लस ग्रोथ अपॉन KE माइनस G। एंड दिस इज आल्सो कहा गया FCFE फॉर फर्स्ट पीरियड मीन्स एक्सपेक्टेड फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी at the end of first period divided by K minus growth. So now let us see one example. So this example is based on free cash flow for equity model. So debt of company is given. So in zero time period we are given that profit of company is rupees 290 crores, equity capital is rupees 1300 crores, par value of share is rupees 40, and debt ratio is 27%. Capital expenditure per share rupees 47. Depreciation per share is rupees 39. Change in working capital per share is rupees 3.45. So further we are given growth rate is our 8%, beta of share of company is 0.10, risk free return is 8.7%, and market return is 10.3%. And we have to determine value of share using free cash flow model. So first we have calculated what is our KE. So basic formula as per CAPM is RF plus beta into RM minus RF. RF is given 8.7%, beta is 0.10, RM is 10.3 minus RF. So this is 8.7 plus 0.10 into 1.6, this is coming 8.86%. So now we have to calculate free cash flow for equity share. So for this purpose, first let us calculate what is earning per share. That is equal to profit divided by number of shares. Number of shares are equity capital divided by par value of share. So let us see now EPS is profit upon number of equity share. Profit is 290 crores. Number of shares are 1300 divided by 40. So this is coming 290 upon 32.5. So EPS is coming rupees 8.923. This is per share. So now we can calculate what is the free cash flow for equity per share. तो इससे बेसिक फार्मा है जो EPS उसमें से माइनस कर लीजिए जितनी मनी आपने इन्वेस्ट की है एसेट्स में, विच इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको बनाना है नेट माइनस डेप्रिसिएशन, और प्लस जो आपने मनी इन्वेस्ट किया चेंज इन वर्किंग कैपिटल में, तो ये बन जाएगा आपका आउटफ्लो। और इसमें जो कुछ फंड्स हम डेट के यूज़ कर रहे हैं, तो इक्विटी फंड्स कितने हैं, डेट इनटू 1 माइनस डेट रेशो। डेट रेशो होती है कि डेट का कितना प्रपोर्शन है टोटल कैपिटल में, तो 1 में से माइनस करेंगे बैलेंस रह जाएगा इक्विटी का प्रपोर्शन। इसमें ये हमारा आउटफ्लो बन गया इक्विटी का। को डेटा आपको दिया है, EPS हमने कैलकुलेट किया है 8.923 माइनस कैपेक्स आपको दिया है 47, डेप्रिसिएशन है 39, चेंज इन वर्किंग कैपिटल है 3.45 इनटू 1 माइनस डेट रेशो आपको दिया है 27%। तो किसी कमिंग 8.923 माइनस ये बन जाएगा 11.45 इंटू 0.73, तो किसी 0.5645। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू शेयर बाय यूजिंग फ्री कैश फ्लो मॉडल। फार्मूला है फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी FCFE इन जीरो टाइम पीरियड इनको कर लीजिए 1 प्लस ग्रोथ है जिस एक्सपेक्टेड FCFE डिवाइडेड बाय KE माइनस ग्रोथ है।
तो FCFE है आपका 0.5645 इनटू ग्रोथ है 8%, सो किसी 1.08 अपॉन कई 0.0816 कई आपने कैलकुलेट की थी 8.86%, तो 0.0816 माइनस ग्रोथ है 0.08, तो किसी कमिंग 0.60966 अपॉन 0.0086, सो वैल्यू शेयर की 70 रुपीज़ 89 पैसा. Next we have a realized yield method for valuation of equity. So realized yield model is applied when share is held by investor for a definite number of years. So number of years can be 5 years, 10 years, whatever it is given. So it means in this case what happens, shareholder will hold share for a definite years and after some time period share will be sold in open market. So therefore what will be our intrinsic value share? So V0 that is equal to present value of future dividends प्लस सेल प्राइस ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ nth टाइम पीरियड. तो इस केस में शेयर होल्डर को जो भी डिविडेंड्स मिलेंगे प्लस जो फ्यूचर में सेल प्राइस मिलेगा उन सब की हम कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू एट रिक्वायर्ड रिटर्न. अब इस केस में आपके दो पॉसिबिलिटीज़ हैं. नंबर 1 केस है आपका व्हेन शेयर इज हेल्ड फॉर 1 ईयर ओनली. अब इन्वेस्टर ने शेयर परचेज किया है और उसको हम होल्ड कर रहे हैं फॉर 1 ईयर ओनली. उस केस में आप देखिए आपका टाइम स्केल बन रहा है 0 टाइम पीरियड में आपका परचेज प्राइस है पी नोट, रिक्वायर्ड रिटर्न कई हमें मेंशन की है. आफ्टर 1 पीरियड अब आपको मिलेगा डिविडेंड विच इज गिवन डिविडेंड पर शेयर और P1 है आपका सेल प्राइस ऑफ शेयर. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शेयर किसी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स हैं आपके डिविडेंड प्लस सेल प्राइस. सो आफ्टर 1 ईयर बेनिफिट है गिवन प्लस P1 उसकी कैलकुलेट कीजिए प्रेजेंट वैल्यू किसी फॉर 1 ईयर ओनली. तो आपने 1 साल का पीवी फैक्टर लेना है. तो जिस पीवी फैक्टर फॉर 1 ईयर जिसे कहा गया डिवाइडेड बाय 1 प्लस के इसकी पावर है 1. तो दिस विल बी वैल्यू ऑफ शेयर. तो कैन वी हैव केस नंबर बी. समटाइम्स ए शेयर होल्डर होल्ड्स ए शेयर फॉर 5 ईयर 10 ईयर. सो वी कैन से दैट शेयर इज हेल्ड फॉर n नंबर ऑफ ईयर. सो दिस इज मोर देन 1 ईयर. उस केस में देखो टाइम स्केल बन जाएगा 0 पीरियड में आपके पास परचेज प्राइस है शेयर का, रिक्वायर्ड रिटर्न है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अप टू n नंबर ऑफ ईयर्स आपको डिविडेंड मिलेगा शेयर के ऊपर लेकिन से जिसे D1 D2 अप टू DN और लास्ट में आपको मिलेगा सेल प्राइस ऑफ शेयर विच इज इंडिकेटेड बाय PN. एंड व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड्स एंड सेल प्राइस. अब आप इसमें टेबल ड्रॉ कीजिए. ईयर्स हैं 1 2 3 अप टू n नंबर ऑफ ईयर. हर साल आपका कैश फ्लो आ जाएगा रुपीज़ में. डिविडेंड है D1 D2 D3 अप टू DN और लास्ट में मिलेगा आपको सेल प्राइस ऑफ शेयर. इसको मल्टीप्लाई कीजिए पीवी फैक्टर है कि कई पीवी फैक्टर्स आ जाएंगे. मल्टीप्लाई करके आपकी आ जाएगी टोटल प्रेजेंट वैल्यू विच इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर. सो वी कैन से V0 इक्वल टू समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड एंड सेल प्राइस विच इज दिस वन. नाउ लेट अस सी वन एग्जांपल ऑन रियलाइज्ड यील्ड मॉडल. So let us say data given in this example. So Mr. A is thinking of buying share of a company at rupees 500 each, having face value rupees 100. So he is expecting a bonus in the ratio 1:5 during the 4th year, and annual expected dividend is 20%, and the same rate is expected to be maintained on the expanded capital base. इट मीन्स आफ्टर बोनस आपकी जो फेस वैल्यू है प्रपोर्शनेटली इंक्रीज हो जाएगी और डिविडेंड आपको मिलेगा जो इंक्रीज जो फेस वैल्यू है. एंड फर्दर इट इज गिवन ही इंटेंट्स टू सेल द शेयर एट द एंड ऑफ 7th ईयर. अब इन्वेस्टर ने शेयर को सेल करना है 7th ईयर में. इट मीन दिस इज डेफिनेट टाइम पीरियड एंड एट एक्सपेक्टेड प्राइस रुपीज 900 ईच. एंड इंसिडेंटल एक्सपेंसिव फॉर परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स आर एस्टिमेटेड टू 5% ऑफ द मार्केट प्राइस. और आपके इसमें ब्रोकरेज चार्जेज हैं जिसको हम कहते हैं इंसिडेंटल एक्सपेंसिव ऑन परचेज एंड सेल ऑफ शेयर. So and investor expects minimum return of 12% per annum किसी के ई. So what minimum price should he pay for each share and should Mr. A buy the share. तो आपको डिटरमिन करना है कितना प्राइस हम रह गए हैं पे करने के लिए विच इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू और फिर आपको डिसीजन लेना है वेदर वी शुड बाय और नॉट. तो लेट अस सी डाटा देखते हैं. देखो इस क्वेश्चन में जो आपको मेंशन किया है मिस्टर ए ने शेयर बाय करना है कंपनी का 0 टाइम पीरियड है. आज फेस वैल्यू ₹100 है. मार्केट प्राइस है ₹500. 4th ईयर में कंपनी बोनस शेयर इशू कर रही है. एक्सपेक्टेशन है 1:5 में. तो मीन्स आपके बोनस के बाद आपकी फेस वैल्यू बन जाएगी 100 प्लस सर्गो 1/5 आपको मिलेगा बोनस 20 टोटल हो जाएगी 120. तो ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं अगेंस्ट 1 शेयर कितना प्रपोर्शनिंग बोनस है और टोटल होल्डिंग पीरियड है आपका 7 ईयर.
फिर आपको मेंशन किया है, अब आपका के है 12%, आपका परचेज प्राइस क्या है, जो मार्केट प्राइस है प्लस उसमें हमारे एक्सपेंसिव ऐड हो जाएंगे जब आप परचेज करेंगे, विच इज जस्ट लाइक ब्रोकरेज 5%। सो परचेज प्राइस है आपका 525। अब आप देखिए बेनिफिट्स क्या मिलेंगे फ्यूचर में, आपको मिलेगा डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड है अब आपका फेस वैल्यू के ऊपर आपको मिलेगा डिविडेंड। तो पहले 4 साल आपको मिलेगा 100 के ऊपर 20%, जिसे 20 20 20। फिफ्थ ईयर से अब आपका बोनस भी ऐड हो गया, फोर्थ ईयर में 120 हो गया फेस वैल्यू, उसके ऊपर आपको मिलेगा 20% डिविडेंड, विच इज 24 एंड 24 अप टू 7th ईयर। फाइनली शेयर को हमने सेल कर दिया है, तो P7 है आपका सेल प्राइस ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ 7th ईयर। तो जिसे इक्वल टू, अब ये प्राइस आपको दिया 900, ये पर शेयर है, इट मीन्स इफ फेस वैल्यू ये 100, प्राइस ही 900, अब आपकी फेस वैल्यू हो गया आफ्टर बोनस 120, तो इंक्लूडिंग बोनस आपका प्राइस बन जाएगा प्रोपोर्शनेटली 1080 और माइनस कर लीजिए एक्सपेंसिव ऑन सेल 5%, तो नेट प्राइस आपको मिलेगा 1026। तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू शेयर, उसका बेसिक फार्मूला है प्राइसिंग वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड प्लस सेल प्राइस ऑफ शेयर। तो उसके लिए हमने एक टेबल ड्रॉ कर दिया है, ईयर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, कैश फ्लो आ गया आपके डिविडेंड ₹2020, पहले 4 साल, फिर 24 है, और प्लस लास्ट में आ गया आपका सेल प्राइस ऑफ शेयर विच वी हैव कैलकुलेटेड 1026 है। अप्लाई कीजिए पीवी फैक्टर, कई हमें दिया है 12%, पीवी फैक्टर है 0.893 से लेके 0.452, मल्टीप्लाई कीजिए कैश फ्लो को पीवी फैक्टर से, ये इसका टोटल आ जाएगी आपकी वैल्यू ऑफ शेयर 561.14। तो किसी मैक्सिमम प्राइस विच इन्वेस्टर की जाएगी टू पे 561.14, पर एक्चुअल में वो कितना प्राइस पे कर रहा है, 525 का उसने परचेज किया है। तो इट मीन्स डिसीजन लेना है आपने, सिंस इंट्रिंसिक वैल्यू V0 561.14 इज मोर देन परचेज प्राइस 525, इट मीन्स शेयर इज अंडर प्राइस एंड इन्वेस्टर शुड बाय द शेयर। Next we are discussing determination of return on equity. There are basically 4 methods used to determine return on equity similar to valuation of equity. Number 1 is our constant dividend model. So as per this, return on equity is percentage of dividend to current market price. Second is constant growth model. As per this model, return on equity is percentage of dividend plus average growth rate. So third one is earnings model. As per this model, return on equity is percentage of EPS to current market price. So fourth is our realized yield method. As per this method, return on equity is percentage of dividend plus capital gain yield. So once investor has purchased a share of a company, so his objective is to determine how much income is achieved on that equity. It means this income is called return on equity. So next topic is to determine return on equity. So let us see what is the meaning of return on equity. So return on equity refers to actual return, means income achieved by an investor from investment in equity share of a company. So it means, let us see, now there are two terms which are confused. Number one is actual return and second is required return. So let us see what is difference between these two terms. So actual return is the return realized by shareholder on current price, which is also called purchase price of share. And this is cost to equity to the company. तो एक्चुअल रिटर्न है कि आपको कितनी रिटर्न मिल रही है इनकम जब आपने मनी इन्वेस्ट किया है शेयर में, और कंपनी के लिए ये कॉस्ट बन जाती है, एंड इट इज डेनोटेड बाय KE और RI, एंड इन दिस केस प्राइस ऑफ शेयर इज गिवन, बट व्हाट इज meant by required return? So it is a return that is expected by shareholder on the basis of market return. ये है कि आपको कितनी रिटर्न मिलनी चाहिए, एक्सपेक्टेशन कितनी है आपकी, तो जितनी मार्केट में रिटर्न चल रही है, एंड इट इज यूज्ड टू डिटरमिन ट्रू वैल्यू और फेयर वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। तो इसको हम यूज करते हैं, बट इट शुड बी वैल्यू ऑफ शेयर विच इज कॉल्ड रिक्वायर्ड रिटर्न, एंड दिस इज आल्सो डिनोटेड बाय KE। तो इस केस में आपको KE मेंशन की है, गिवन है, तो आपको वैल्यू डिटरमिन करनी है। एक्चुअल रिटर्न में क्या है, आपको प्राइस किया है, उसमें KE मिसिंग है, वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो हमारा टॉपिक है कि एक्चुअल रिटर्न आप कैसे डिटरमिन कर सकती हैं। अब उसके डिफरेंट मेथड्स हैं टू डिटरमिन रिटर्न ऑन इक्विटी। तो नंबर 1 is constant dividend model, then dividend constant growth model, then dividend multi growth model, earnings yield model, realized yield one period model, and realized yield multi period model.
So let us see number 1 constant dividend मॉडल। तो इस केस में इन्वेस्टर ने शेयर परचेज किया है पर आपको डिविडेंड मिलेगा कांस्टेंट फॉर होल लाइफ। सो व्हाट विल बी रिटर्न विच इज डिनोटेड बाय आरआई और केई। सो दिस इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ डिविडेंड ऑन परचेज प्राइस ऑफ शेयर। तो फार्मूला बन जाएगा डिविडेंड पर शेयर जीपीएस अपॉन पी नोट इनटू 100। तो सेकंड है आपका डिविडेंड कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। तो कई बार डिविडेंड्स आपके फ्लक्चुएट करते हैं फ्रॉम ईयर टू ईयर, उसमें हम कैलकुलेट करते हैं बट ये एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड विच ग्रोथ इज कांस्टेंट। तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। तो इसमें फार्मूला बन जाएगा आर आई और के ई इक्वल टू, तो हम देखें एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना है नेक्स्ट ईयर में विच इज जी जीरो इंटू 1 प्लस ग्रोथ अपॉन करंट प्राइस कितना है प्लस ग्रोथ आपकी ऐड हो जाएगी। तो इसमें से डिविडेंड की रिटर्न है प्लस इतनी ग्रोथ को आपको हर साल मिलनी है वो भी आपकी रिटर्न बन जाएगी। तो वी कैन आल्सो से गए दिस इज डी वन अपॉन पी जीरो प्लस जी ग्रोथ। तो नंबर थर्ड देखिए डिविडेंड मल्टी ग्रोथ मॉडल। कई बार क्या डिविडेंड में ग्रोथ चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल जीरो टाइम पीरियड में आपको प्राइस किया है शेयर का, करंट डिविडेंड आपको दिया है, आपको एम ईयर्स, एम होता है आपका टोटल पीरियड ऑफ अब नॉर्मल ग्रोथ, आपकी ग्रोथ है अब नॉर्मल मे बी 15%, ये भी आपको दी होगी। और उसके बाद आपकी ग्रोथ कॉन्स्टेंट हो जाती है आफ्टर एम पीरियड। तो जिसे कहा कि जी एन मीन्स नॉर्मल ग्रोथ, मीन्स करंट प्राइस है, डिविडेंड है, अब नॉर्मल और नॉर्मल ग्रोथ है और रिटर्न कितनी है वो आपकी मिसिंग है, वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमें एक टेबल ड्रॉ करना है, पर उसके लिए पहले कैलकुलेट करके हैं। जब हम कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर डिविडेंड तो हमें चाहिए स्टार्टिंग वैल्यू क्या है के ई की। तो उसका फार्मूला है डिविडेंड, इसकी परसेंटेज निकालो परचेज प्राइस के ऊपर इनको 100 प्लस जितनी ग्रोथ्स हैं उनको बना दो एवरेज। जैसे दो ग्रोथ हैं एक नॉर्मल और नॉर्मल, उनको ऐड करके डिवाइड कर दिया 2, तो ये आपकी स्टार्टिंग वैल्यू आ जाएगी के ई की। अब आप एक टेबल ड्रॉ कीजिए, ईयर्स हैं 1 से लेकर एम तक, फिर लास्ट में एम पीरियड आ जाएगा, डिविडेंड्स आ जाएंगे फ्रॉम कैश फ्लोज विच आर डिविडेंड्स फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर टू एम ईयर। फिर एम पीरियड के में आपको कैलकुलेट करनी है शेयर की वैल्यू वी एम। उसका फार्मूला क्या है, डी एम हो गया डिविडेंड ऑफ एम एक्स पीरियड और प्लस उसमें ग्रोथ ऐड कर जो नॉर्मल वो बन जाएगा डिविडेंड ऑफ नेक्स्ट पीरियड, डिवाइड करेंगे के ई माइनस जी एन। अब ये के ई जो मिसिंग है हमारी, तो जो आपने जूम की है स्टार्टिंग वैल्यू उसको हम यहाँ पुट करेंगे, तो उसी के बेस पर आपने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो एक लो रेट है तो आपने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करिए, जिस मनी कमिंग दिस विल बी स्लाइटली हायर, तो उसको रिड्यूस करना है तो के ई को हम इंक्रीज करेंगे। तो जब आप के ई चेंज करेंगे यहाँ पर फिर वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगेन यू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू एट हाई रेट। अब आपके पास दो प्रेजेंट वैल्यूज हैं डिविडेंड्स की, वन इज हायर वन इज लोअर, तो उसको आपने इक्वेट करना है पी जीरो के। फिर अप्लाई कीजिए नॉर्मल फार्मूला जो इंटरपोलेशन का होते हैं, तो इससे आर आई या के ई आ जाएगी। फार्मूला है लो रेट ऑफ रिटर्न प्लस प्रेजेंट वैल्यू है कि लो रेट माइनस पी जीरो के इक्वल करना है अपने, नीचे आएगा डिफरेंस इन टू प्रेजेंट वैल्यूज इनटू डिफरेंस इन टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो दिस विल बी रिटर्न ऑन इक्विटी और विच इज आल्सो कॉल्ड के ई। नेक्स्ट वी हैव अर्निंग्स यील्ड मॉडल। So this model is applied when dividends are not available. So in that case, we can determine the return on equity on the basis of earning per share. So our formula is RI or KE is equal to EPS upon P naught, which is current price of share times 100. But we also know that price earning ratio is equal to MPS upon EPS, and this is our P means price and this is EPS. It means this is reciprocal. So we can also say that KE is equal to 1 upon price earning ratio. So next we have realized yield one period model. So this model is applied when share is held for a definite period. तो वन पीरियड में हम ले रहे हैं कि शेयर इज हेल्ड फॉर 1 ईयर ओनली। इट मीन्स इन्वेस्टर परचेज शेयर इन जीरो टाइम पीरियड व्हेन परचेज प्राइस इज गिवन एंड आफ्टर 1 ईयर शेयर विल बी सोल्ड। इट मीन्स आफ्टर 1 ईयर नाउ शेयर होल्डर विल गेट डिविडेंड फ्रॉम शेयर एंड P1 is the sale price of share. So in that case what will be return? तो बेसिक फार्मूला है आपका प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर बेनिफिट्स इज इक्वल टू करंट प्राइस एट व्हाट रेट इट बिकम्स इक्वल दैट इज रिटर्न। तो आपका को फार्मूला बन जाएगा, फ्यूचर में बेनिफिट आपको मिल रहा है G1 प्लस P1 आफ्टर 1 ईयर, उसकी प्रेजेंट वैल्यू है डिवाइडेड बाय 1 प्लस के ई, इट शुड बी इक्वल टू परचेज प्राइस विच इज P नॉट। अब आपकी के ई मिसिंग है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो दिस इज 1 प्लस के ई इज इक्वल टू D1 प्लस P1 अपॉन P नॉट।
तो 1 को ट्रांसफर कर रखे हैं उस साइड, तो वी कैन से कि के और आर आई इज इक्वल टू G1 प्लस P1 अपॉन P0 माइनस 1। तो आपने एलसीएम लिया, जिसे G1 प्लस P1 माइनस P0 अपॉन P0, तो इसको आप सेपरेट कर लीजिए। दो कंपोनेंट्स हैं, के और आर आई इक्वल टू डिविजन की कितनी परसेंटेज है प्राइस के ऊपर, G1 अपॉन P0 प्लस P1 माइनस P0 अपॉन P0। तो इट मीन्स रिटर्न में आपके दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो आपको डिविजन से इनकम आ रही है और एक आपको कैपिटल गेन से इनकम आ रही है जब आप शेयर को सेल कर रहे हैं। तो G1 अपॉन P0 शो करता है डिविजन रिटर्न, P1 माइनस P0 अपॉन P0 शो कर रहा है कैपिटल गेन रिटर्न। तो ये डेसिमल में आएगी, इनको 100 कर लीजिए, वो परसेंटेज बन जाएगी। नेक्स्ट वी हैव रिलाइज इज मल्टी पीरियड मॉडल। So in this case, share is held for a definite number of years, maybe 5 years, 10 years, and this is denoted by n number of years. तो आपको देखो डाटा मिल जाएगा n ईयर्स का। जीरो पीरियड है, आपने शेयर परचेज किया है, तो 1 to अप टू n ईयर्स आपको हर साल डिविडेंड रिसीव हो रहे हैं, G1 G2 अप टू Gn। लास्ट में आपको मिल जाएगा सेल प्राइस ऑफ शेयर, जब आप शेयर को सेल करते हैं। तो Pn शो करके है सेल प्राइस ऑफ शेयर एट एंड ऑफ nth ईयर। अब आपकी रिटर्न क्या होगी, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कीजिए फ्यूचर बेनिफिट्स की और उसको इक्वल कर लीजिए करंट परचेज प्राइस के। तो आपको टेबल ड्रॉ करना है, ईयर्स हैं 1 to अप टू n ईयर्स, कैश फ्लो है आपके, डिविडेंड्स आपको मिलेंगे हर साल, लास्ट में मिलेगा सेल प्राइस ऑफ शेयर। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे हम, सो जाएगा इट इज इक्वल टू पी नोट। तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए आपको चाहिए पीवी फैक्टर, उसके लिए लेके हम स्टार्टिंग वैल्यू क्या लेंगे हम, ऑफ के ई, उसका फार्मूला है टोटल करके डिविडेंड जो आपको मिले हैं प्लस सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस, ये हो गया गेन, कैपिटल गेन। तो ये टोटल इनकम आ गई आपकी, उसको डिवाइड करो नंबर ऑफ ईयर से n से, वो बन गई एवरेज इनकम। उसकी निकालो परसेंटेज ऑन परचेज प्राइस इनटू 100। तो ये आपकी स्टार्टिंग वैल्यू के ही काम आ जाएगी। तो लेके से इसको किसी कमिंग ओवर 12%, तो आपने पीवी फैक्टर कैलकुलेट किया 12% के ऊपर, फिर चेक कीजिए वैल्यू कम या ज़्यादा है, नॉर्मली हायर होगी, देन यू ट्राई हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक नई वैल्यू आ जाएगी। नाउ वी कैन इंटरपोलेट। सो के और आर आई इज इक्वल टू लो रेट ऑफ रिटर्न प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लो रेट माइनस P0 अपॉन डिफरेंस इन दी टू प्रेजेंट वैल्यूज इनटू डिफरेंस इन टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो दिस विल बी अवर के विच इज आल्सो कॉल्ड रिटर्न ऑन इक्विटी। अब डिस्कस करते हैं पूरा एग्जांपल इसके बेस पे ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी। नाउ लेट अस सी एग्जांपल ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी। सो डेटा गिवन इन दिस एग्जांपल इज So Star Investment Limited wants to make investment in equity shares of different IT sector companies and it has collected information for different companies as given below. तो आपको देखा गया है डिफरेंट कंपनीज का। नंबर 1 है कि ब्लू सिस्टम्स लिमिटेड, सेकंड है कि रेग IT सर्विसेज लिमिटेड, नंबर 3 है कि ब्लैक माइक्रोचिप लिमिटेड। तो लेके सी 1 by 1। नंबर 1 इज अवर तो ब्लू सिस्टम्स लिमिटेड। उसमें आपको डाटा मेंशन किया है, कंपनी एक्सपेक्टेड टू पे डिविडेंड इन फर्स्ट ईयर दिस इज 5 रुपीज़। इट मीन किसी एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज गिवन, करंट प्राइस ऑफ शेयर इज गिवन 50 रुपीज़ एंड ग्रोथ इज 6% पर एनम विच विल कंटिन्यू फॉर एवर। तो इट मीन्स ग्रोथ इज कांस्टेंट अप टू इन्फिनिटी। सो दिस इज कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। सो एज पर कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल व्हाट इज रिटर्न ऑन इक्विटी विच इज आर आई और के, दिस इज गिवन अपॉन पी नोट प्लस ग्रोथ। Expected dividend is given 5 rupees, price is given 50 plus growth is 6%, 0.06. So by solving this we are getting 0.10 plus 0.06 which is 0.16. So return on equity is 16%. So second is Reg IT Services Limited. So in this case current price of share is given 150. Current dividend per share is 10.91. Growth up to 5 years is 10%, which is a normal growth period. After 5 years, growth will become constant, which is 6% up to infinity. So it means this is multi-growth model. So in this case, we have to calculate what is KE, that is equal to present value of dividend, so that it becomes equal to purchase price. तो इसके लिए आप टेबल ड्रॉ कीजिए, ईयर्स हैं 1 to 5, तो आपके डिविडेंड्स आ जाएंगे 10.91, उसमें ग्रोथ ऐड हो रही है 10% एवरी ईयर अप टू 5 ईयर। तो किसी भी कमिंग 12, 13.20, 14.52, 15.97, 17.57। उसके बाद ग्रोथ आपकी कांस्टेंट हो जाएगी 6%। उसके बेस पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 5th ईयर में। तो इसका फार्मूला है डिविडेंड को 5th ईयर 17.57 इंटू 1 प्लस ग्रोथ 6% अपॉन के ई आपकी मिसिंग है माइनस ग्रोथ। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एट के ई। तो अब देखते हैं कि के ई आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं।
तो उसके लिए हमने कैलकुलेट किया स्टॉकिंग वैल्यू के फार्मूला है डिविडेंड की देखो परसेंटेज निकालो कितनी है प्राइस पे और ग्रोथ को कर दो एवरेज। तो डिविडेंड की परसेंटेज आ रही है 10.91 अपॉन 150 टू 100 प्लस एवरेज ग्रोथ है 8, टोटल बन जाएगी 15.3%। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं 15% से। तो 15 में हम यहाँ के ही लेंगे 0.15, तो उसके बेस पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 206.94। अब अप्लाई किया आपने पीवी फैक्टर 15% 5 ईयर के लिए, ये भी 5 ईयर है आपका। मल्टीप्लाई कीजिए डिविडेंड्स को, टोटल प्राइस वैल्यू आ गई 150.69, जिस स्लाइटली मोर देन पर के प्राइस। इसको रिड्यूस करने के लिए हमने रिटर्न को इंक्रीज कर दिया है 1% से 16%। पर अब आपको यहाँ पे जब के ही लेंगे 16%, उसकी वजह से ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी किसी 186.24। नाउ यू अप्लाई पीवी फैक्टर है 16% फॉर 5 ईयर और इसकी टोटल प्राइस वैल्यू है 135.29। So now we can interpolate in these two values. So K is coming लो रेट है आपका 15%, प्राइस वैल्यू लो रेट है 150.69, हमने इक्वल करना है 150 के। नीचे आएगा डिफरेंस इन टू प्राइस वैल्यूज में इनटू डिफरेंस इन रेट ऑफ रिटर्न 16 माइनस 15 दिस इज 1। सो बाय सॉल्विंग दिस वी गेट 15 प्लस 0.69 अपॉन 15.4 विच इज 15.04%। तो थर्ड आपको डेटा दिया है, कंपनी है ब्लैक माइक्रोचिप लिमिटेड। इसमें जो को मेंशन किया है आपको एक्स बिगनिंग प्राइस दे रखा है बिगनिंग। आपके पास 4 ईयर्स का डाटा है 1 2 3 4, पर बिगनिंग होता है फर्स्ट ईयर का बिगनिंग है 0 पीरियड। तो हमने यहाँ मेंशन किया है फर्स्ट ईयर का प्राइस है बिगनिंग में 100, सेकंड के बिगनिंग में है 110, थर्ड का बिगनिंग है 120, फोर्थ का बिगनिंग है 130। फिर आपको मेंशन किया है कंपनी विल पे डिविडेंड पर शेयर एट द एंड ऑफ एवरी ईयर 1 2 3 4 जिसे 10 17.50 26 एंड 30। फिर आपको मेंशन किया है कम डिविडेंड प्राइस एट एंड ऑफ ईच ईयर। इट मीन फर्स्ट ईयर के एंड में 120 130 7.5 150 180 को आप चेक भी कर सकते हैं। इसमें से डिविडेंड माइनस कर दो, ये आपका एक्स डिविडेंड प्राइस आ जाएंगे। तो इसमें सब आपका जो फोर्थ ईयर का प्राइस है वो मिसिंग है, इसमें वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कम डिविडेंड प्राइस माइनस कर दो डिविडेंड, तो ये आपका एक्स डिविडेंड प्राइस आ जाएगा। अब आपको कैलकुलेट करनी है रिटर्न ऑन इक्विटी बाय रियलाइज्ड यील्ड मॉडल। तो रियलाइज यील्ड में है कि आपने 0 में शेयर परचेज किया है, फोर्थ ईयर में आप उसको सेल कर देंगे, इतनी 4 साल का हमारा होल्डिंग पीरियड बन जाएगा। तो उसके लिए आपको चाहिए टेबल ड्रॉ करेंगे 4 ईयर्स का। हमने देखना है फ्यूचर में कितना कैश फ्लो मिल रहा है। हर साल आपको डिविडेंड मिलेगा 10 17.5 26 एंड 30, लास्ट में आपको सेल प्राइस मिल जाएगा शेयर का। तो ये टोटल कैश फ्लो बन रहे हैं आपके 235.50। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 100 इट इज इक्वल टू परचेज प्राइस। उसके लिए देखो आपको निकालना है स्टॉकिंग वैल्यू ऑफ के। तो वो हम ले रहे हैं सिंपल एवरेज रिटर्न कितनी मिल रही है। टोटल कैश इनफ्लो माइनस परचेज प्राइस है 100, तो ये हमारी टोटल इनकम आ गई 4 सालों की। उसको डिवाइड किया 4 से, वो बन गई एवरेज इनकम। उसकी परसेंटेज निकाली परचेज प्राइस 100 के ऊपर इंटू 100, जिस इज कमिंग 34%। तो स्टार्ट करते हैं। पीवी फैक्टर ने लिया 34% पे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी 84.44 विच इज वेरी लेस, हमें चाहिए 100। तो उसको इंक्रीज करने के लिए हमने रिड्यूस किया रेट ऑफ रिटर्न 30%। 30% भी पीवी फैक्टर है 4 साल का, उसकी प्रेजेंट वैल्यू है 93.50। तो दिस इज स्लाइटली लेस देन 100, इसको और इंक्रीज करना है। अब हमने रिड्यूस किया है पीवी फैक्टर है 27%। तो दिस पीवी फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू 101.30, दिस इज स्लाइटली मोर देन 100। अब आप इंटरपोलेट कर सकते हैं इन बिटवीन 93.58 और 101.30 में। तो आपकी के आ जाएगी। लो रेट है जो 27%, प्रेजेंट वैल्यू है 101.30, हमें चाहिए P0 100। नीचे इन दोनों प्रेजेंट वैल्यूज का डिफरेंस आ जाएगा इनटू डिफरेंस इन रेट ऑफ रिटर्न 30 माइनस 27 जिसे कि 3%। सो बाय सॉल्विंग दिस वी गेट 27 प्लस 1.3 अपॉन 7.72 देखिए 27.72 राउंडेड करके आ रहा है आपका 27.2%, जिसे रिटर्न ऑन इक्विटी बाय रियलाइज्ड यील्ड मेथड। और क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू में, हमने केस सिनेरियो में कवर कर रखे हैं, वो भी आपके चेक कर सकते हैं, उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट अवेलेबल है। So next we have a topic of right share and buyback of shares. So in case of right shares, company will issue share to existing shareholders at a lower price as compared to market price. And objective of company is to calculate X right price, which is called average price of share in the market. And in case of right issue, we also have to determine what is the effect on the wealth of shareholder due to right issue.
So similarly, in case of buyback of shares, we have to calculate X buyback price, which means average market price in the market. So what is meant by rights shares? Rights shares are issued by a company to existing shareholders to raise additional funds for expansion or diversification of business. So these rights shares are issued at a lower price as compared to current market price, which is denoted by CMP or P note. So what is the objective of rights shares? So investor wants to determine the effect of rights issue on market price of share and earning per share. And for this purpose, following data or information of a company is given. So data given is like first of all N note, which is present number of shares of company. Then we have a P note, this is current market price of share, and EPS, which is current EPS. Then we are also given delta N, means what are number of rights share to be issued. And S is called subscription price of rights share, which is also called right issue price. And M is number of shares required to get one right share. तो जैसे आपको राइट इशू की रेशो मेंशन की होती है तो उसके बेस पर आप डिटरमिन कर सकती हैं कि आपको वन राइट के लिए कितने शेयर्स आपके पास होने चाहिए, जिस इज डिनोटेड बाय एम. And on the basis of this information, now we can calculate what is the effect of right issue on market price or EPS. तो सबसे पहले नंबर 1 क्या मार्क लिया आपकी एक्स राइट प्राइस ऑफ शेयर विच इज डिनोटेड बाय P1. तो एक्स राइट प्राइस होता है कि आफ्टर राइट इशू व्हाट विल बी एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ शेयर. तो जिस फार्मूला है टोटल मार्केट वैल्यू देखेंगे हम कितनी है इक्विटी की डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर दिस इज आफ्टर राइट इशू. तो टोटल मार्केट वैल्यू इक्विटी बन जाएगी प्रेजेंट नंबर देखो कितने हैं शेयर के एन नोट इनको करंट प्राइस कितना है ये बन गई आपकी करंट मार्केट वैल्यू प्लस जो फंड्स रेज किए हैं कंपनी ने फ्रॉम राइट इशू जिसे डेल्टा नंबर ऑफ राइट शेयर्स हैं इनको राइट इशू प्राइस एस. तो ये बन जाएगी टोटल वैल्यू. डिवाइड कर लीजिए टोटल नंबर ऑफ शेयर आफ्टर राइट इशू विच इज इक्वल टू एन नोट प्लस डेल्टा एन. तो सेकंड आपको डिटरमिन करना है वैल्यू ऑफ राइट जिसको हम वी से डिनोट करते हैं. वैल्यू ऑफ राइट का मीनिंग होता है कि आपका मार्केट प्राइस कितना फॉल कर रहा है आफ्टर राइट इशू. तो जिसे आल्सो कहा गया लॉस इन मार्केट वैल्यू शेयर आफ्टर राइट इशू. तो इसका डायरेक्ट फार्मूला है वैल्यू ऑफ राइट करंट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस. P1 जो है हमारा एक्स राइट प्राइस है आफ्टर, तो जो डिफरेंस आएगा वो आपका लॉस हो रहा है मार्केट वैल्यू में. और सेकंड फार्मूला है आंसर सेम रहेगा करंट प्राइस P नोट माइनस सब्सक्रिप्शन प्राइस उसको डिवाइड कर दिए 1 प्लस एम. एम थी आपके नंबर ऑफ शेयर्स रिक्वायर्ड टू गेट वन राइट शेयर. तो आंसर दोनों मेथड से आपका सेम आ जाएगा दिस इज वैल्यू ऑफ राइट. नंबर थर्ड ये सेल प्राइस ऑफ राइट. कई बार होता है कि शेयर होल्डर ने अपना राइट जो है मार्केट में सेल करना है तो सेल करके आपको कितना प्राइस मिलना चाहिए. तो इट मीन्स जैसे जो प्राइस टू बी रिसीव इफ राइट इज सोल्ड इन ओपन मार्केट. तो उसका बेसिक फार्मूला बन जाएगा कि अब आपने जब राइट सेल करना है तो आप देखिए कि आपको एक राइट के लिए कितने शेयर्स होने चाहिए प्रेजेंटली और उनमें हमें कितना लॉस हो रहा है तो उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए विच इज बी इंटू एम. तो वो आपका राइट इशू का प्राइस बन जाएगा सेल प्राइस. सो फोर्थ वी हैव टू डिटरमिन व्हाट इज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर. तो पहले कैलकुलेट करके हैं प्रेजेंट वेल्थ कितना है. वेल्थ मीन्स टोटल मार्केट वैल्यू कितनी है इक्विटी की जिसको W नोट से शो कर रहे हैं जिसे एन नोट इंटू पी नोट. तो ये प्रेजेंट शेयर्स हैं और उनका करंट प्राइस है. अब आपको देखना है व्हाट इज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर आफ्टर राइट इशू. अब इसमें तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं. नंबर 1 राइट्स आप सब्सक्राइब कर रहे हैं या राइट आपने सेल कर दिया है या राइट आपका लैप्स हो गया है. तो फर्स्ट स्टेज देखते हैं जब राइट्स आपने सब्सक्राइब किए हैं तो इसको हम डिनोट कर रहे हैं वेल्थ आपके राइट को W1 से. तो फार्मूला बन जाएगा प्रेजेंट शेयर कितने हैं एम नोट प्लस डेल्टा एन जो आपको नए शेयर मिल रहे हैं थ्रू राइट इशू उनको मल्टीप्लाई कीजिए बट प्राइस आपके राइट इशू. तो ये बन जाएगी मार्केट वैल्यू आपका राइट माइनस जब आपने राइट को सब्सक्राइब किया है उसके लिए कुछ पेमेंट भी किया आपने वो माइनस हो जाएगी. तो नंबर ऑफ राइट शेयर जो आपने सब्सक्राइब किए हैं डेल्टा एन और उनका सब्सक्रिप्शन प्राइस है एस विच इज राइट इशू प्राइस. तो दिस विल बी वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर आफ्टर राइट इशू. और आप देखेंगे कि ये वेल्थ और जो प्रेजेंट वेल्थ है वो दोनों सेम ही रहते हैं इस केस में. तो देयरफॉर देयर इज नो इफेक्ट ऑन वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर.
तो सेकंड केस है जब आप राइट को सेल कर रहे हैं मार्केट में, तो उस केस में आपका वेल्थ बन जाएगा, प्रेजेंट शेयर्स आपके सेम रहेंगे एन नोट, बट उसका प्राइस फॉल हो गया है P1। बट वो जो प्राइस फॉल हो रहा है वो हमें रिकवर हो गया है थ्रू सेल ऑफ राइट। तो जितने राइट शेयर हैं उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए उनका सेल प्राइस जो हमने कैलकुलेट किया था। तो उस केस में भी आप देखेंगे टोटल जो वेल्थ है शेयर होल्डर का वो सेम है जो पहले था आपका। इट मीन्स नो इफेक्ट ऑन वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। और थर्ड केस है यदि आपका राइट लैप्स हो गया है, ना ही आपने राइट को सब्सक्राइब किया है ना ही आपने राइट को सेल किया है, तो मीन राइट लैप्स हो गया है, उस केस में आपका वेल्थ रह जाएगा जो प्रेजेंट शेयर हैं इनटू जो उनका प्राइस है आफ्टर राइट इशू। तो इस केस में वेल्थ जो है शेयर होल्डर का वो रिड्यूस हो जाएगा। तो नेक्स्ट आता है कि जब कंपनी बायबैक करती है अपने शेयर से, तो इन दिस केस कंपनी बायबैक सम ऑफ इट्स शेयर्स एट ए प्राइस, नॉर्मली जो बायबैक होता है वो होता है एट ए हायर प्राइस है। तो इट मीन जैसे बायबैक प्राइस है जो मोर देन करंट मार्केट प्राइस है। तो इसमें नॉर्मली हमें कैलकुलेट करने हैं, जैसे अभी आपने कैलकुलेट किया था एक्स राइट प्राइस, ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं एक्स बायबैक प्राइस। तो मीन्स व्हाट विल बी प्राइस ऑफ शेयर आफ्टर बायबैक ऑफ शेयर। तो इसमें बस डिफरेंस आएगा, प्रेजेंट देखो मार्केट वैल्यू कितनी है, प्रेजेंट नंबर ऑफ शेयर्स हैं, करंट प्राइस है, माइनस जब कंपनी ने बायबैक किया है उसके लिए कितना अमाउंट पे किया है, तो वो माइनस हो रहा है आपका। डेल्टा एन है हमारा नंबर ऑफ शेयर बॉट बैक बाय कंपनी, और एस हो गया आपका बायबैक प्राइस। और उसको डिवाइड कर लीजिए आप नंबर ऑफ शेयर आफ्टर बायबैक, तो किसी भी एन नोट माइनस डेल्टा एन, तो ये आपका एक्स बायबैक प्राइस आ जाएगा। और एस हमने रखा है इसमें बायबैक प्राइस। राइट इशू में था एस हमारा सब्सक्रिप्शन प्राइस, मीन्स राइट इशू प्राइस है, तो एस यहाँ पर है बायबैक प्राइस, फार्मूला आपका सेम है। बस राइट में देखो हमने किया था प्लस, क्योंकि हमें फंड्स रिसीव हो रहे हैं, शेयर्स इंक्रीज हो रहे हैं। बायबैक में वैल्यू हमारी रिड्यूस हो रही है, नंबर ऑफ शेयर्स आपके डिक्रीज हो रहे हैं। So next we have to see what is the effect on EPS after right issue or buyback. So for this purpose we calculate EPS after right issue or buyback. तो इसको हम जनरेट करते हैं EPS 1 से, तो फार्मूला बन जाएगा प्रेजेंट टोटल अर्निंग्स कितनी है, जिसे एन नोट इनटू EPS इन जीरो पीरियड, जीरो मीन्स जो प्रेजेंट है आपकी, और डिवाइड कर लीजिए बता नंबर ऑफ शेयर आफ्टर राइट और बायबैक। राइट इशू में देखो नंबर ऑफ शेयर बन जाएंगे एन नोट प्लस डेल्टा एन, बायबैक में आ जाएंगे एन नोट माइनस डेल्टा एन। ये आपका EPS आ जाएगा आपका राइट इशू और बायबैक। नाउ लेट अस सी वन एग्जांपल ऑन वैल्यूएशन ऑफ राइट शेयर्स। So data given in this example is Aggressive Limited is proposing to fund its expansion plan of rupees 12 crores by making a right issue, and current market price of share is rupees 40. The board is willing to offer a discount of 40% on the current market price for the right issue. तो कंपनी को फंड्स चाहिए 12 करोड़, करंट प्राइस है 40 रुपीज़, और आपने राइट शेयर इशू करने हैं तो 40% डिस्काउंट के ऊपर। एंड बोर्ड इज आल्सो डिजायरस दैट अ फॉल इन एक्स राइट प्राइस ऑफ द शेयर को भी रिस्ट्रिक्टेड टू 10% ऑफ करंट मार्केट प्राइस से। तो एक्स राइट प्राइस जो है आपका वो मैक्सिमम डिस्काउंट पर होना चाहिए एट ए 10% ऑफ करंट मार्केट प्राइस से। Then we have to calculate number of new shares to be offered for right issue and theoretical value of right, total number of shares to be issued, and what is effect on the wealth of a shareholder who has presently 1500 shares. तो लेकिन सी डाटा देखो आपको मेंशन किया है क्वेश्चन में, कंपनी एग्रेसिव लिमिटेड आपको फंड्स चाहिए 12 करोड़ की 1200 लैक्स, करंट मार्केट प्राइस है शेयर का 40 रुपीज़, राइट इशू का प्राइस है आपका एट डिस्काउंट टू 40%, और जो आपका एक्स्ट्रा एक प्राइस होना चाहिए इट शुड बी एट डिस्काउंट टू 10% ऑफ करंट मार्केट प्राइस। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ न्यू शेयर टू बी इशूड, लेके से जिसे जो डेल्टा एन जो आपकी मिसिंग है। तो नंबर 1 वी आर गिवन करंट मार्केट प्राइस, इसको डिनोट कर रखे हैं P0 से, जिसे 40 रुपीज़, राइट इशू प्राइस हो गया एस, जिसे 40 माइनस 40% डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं हम, तो दिस विल बी 24। और आपका एक्स राइट प्राइस P1 वो आपको मेंशन किया है, जिसे जो 40 माइनस है 10%, सो दिस विल बी 36। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं फार्मूला P1 का फार्मूला है प्रेजेंट नंबर ऑफ शेयर इनटू करंट प्राइस प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर, लेके से जिसे R, तो डेल्टा एन को हमने R से डिनोट कर दिया है, S हो गया आपका इशू प्राइस डिवाइडेड बाय 1 प्लस R। तो इट मीन्स P1 दिया है आपको 36, करंट प्राइस है आपका शेयर का 40 रुपीज़ फॉर 1 शेयर, अगेंस्ट 1 शेयर नंबर ऑफ राइट आपके मिसिंग हैं, और उसका इशू प्राइस है 24 जो आपने कैलकुलेट किया है, नीचे आ गया 1 प्लस R। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, जिसे कि 36 प्लस 36 R इक्वल टू 40 प्लस 24 R।
So we are getting 36 minus 24, 12 R is equal to 4. So R is coming 4 by 12, 1 by 3. तो इट मीन जो राइट इशू की रेशो है वो आपकी बन रही है 1/3 मीन्स 1:3. फॉर एवरी 3 शेयर्स सो यू विल गेट टू 1 राइट शेयर. तो सेकंड ईयर आस्किंग व्हाट इज वैल्यू ऑफ राइट. वैल्यू ऑफ राइट को क्या कितना लॉस हो रहा है मार्केट वैल्यू में. तो उसके दो फार्मूले हैं. फर्स्ट हमने अप्लाई किया बी इज इक्वल टू करंट प्राइस पी नोट माइनस P1 है एक्स राइट प्राइस. तो जिसे 40 है एक्स मैंने आपको दिया ही है 36 तो मीन 4 रुपीज़ का हमें लॉस हो रहा है. तो ये वैल्यू ऑफ राइट बन जाएगी. और सेकंड फार्मूला है वी इज आल्सो इक्वल टू पी नोट माइनस राइट इशू प्राइस अपॉन 1 प्लस एम. एम होता है कि कितने प्रेजेंट शेयर होने चाहिए आपके पास टू गेट 1 राइट शेयर. तो आपके पास देखो अब 3 शेयर होने चाहिए टू गेट 1 राइट शेयर. राइट इशू रेशो 1:3. तो पुट कीजिए फार्मूले में पी नोट है आपका 40, राइट इशू प्राइस है 24 एंड 1 प्लस 3 16/4. आंसर इज सेम ₹4. दिस इज वैल्यू ऑफ राइट. नेक्स्ट क्लियर आस्किंग कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ शेयर को भी इशू. अब जो अपने फंड से रेज करने हैं 12 करोड़ के उसके लिए कितने शेयर आपको इशू करने हैं. तो सिंपल है जिसको डेल्टा से डिनोट करके हैं टोटल शेयर्स को फंड्स रिक्वायर्ड अपॉन एस हो गया राइट इशू प्राइस. फंड्स की रिक्वायरमेंट है 1200 लैक्स और इशू प्राइस है आपका 24. सो जिसे कमिंग 50 लाख शेयर्स. तो 50 लाख शेयर्स आपको इशू करने हैं. तो नाउ हियर आस्किंग व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ ए शेयर होल्डर आफ्टर राइट इशू. तो उस शेयर होल्डर के पास है प्रेजेंट नंबर ऑफ शेयर हैं 1500. तो आप देखिए उसको कितने राइट शेयर मिलेंगे डेल्टा एन 1/3 1500 इंटू 1:3 में 500 शेयर आपको और मिल जाएंगे. सो व्हाट विल बी वेल्थ आपका राइट फार्मूला बन जाएगा एन नोट प्लस डेल्टा एन इंटू P1. तो ये प्रेजेंट शेयर्स हैं प्लस राइट शेयर टोटल शेयर्स हो गए उनका प्राइस हो गया आपका राइट माइनस जो प्राइस आपने पे किया है कंपनी को वो लेस हो जाएगा जिस इज डेल्टा एन इंटू एस. तो इट मीन्स टोटल शेयर है आपके 1500 प्लस 500 इंटू P1 है आपका 36 एक्स राइट प्राइस है और 500 शेयर के लिए आपने पे किए हैं 24 रुपीज़. तो दिस वैल्यू इज कमिंग आपके राइट इशू दिस इज 2000 इंटू 36 72,000 माइनस 12,000. सो वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर आफ्टर राइट इशू विल बी ₹60,000. तो फर्दर और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर किए हैं थ्रू MCQ विच आर बेस्ड ऑन केस सिनेरियो जिसकी सेपरेट प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं. यू कैन आल्सो डू गोल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस. नेक्स्ट लेट अस सी एग्जांपल ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स. So data in this example is so High Growth Limited HGL was having an excellent growth over a number of years and the company has a market capitalization of rupees 50,000 crores and current EPS is rupees 600 with a price earning ratio of 25. The board of directors is considering a proposal to reward its shareholders by buying back 20% shares at a premium. And the premium is to be paid by raising a loan from bank at interest rate of 16%. That interest on loan is serviced by internal accruals as supported by financials of the company. The directors expect post buyback price of rupees 10,000. It means after buyback price should be 10,000 rupees. Price earning ratio of post buyback will remain same and applicable tax rate is 30%. Then different questions are asking. So number one, we have to calculate amount of interest which can be paid for availing the bank loan. What will be amount to be loan to be raised for the loan? What will buyback premium? What will buyback price? And what will market value company after buyback? So let us see data given in this question. तो आपको दिया है कंपनी है हाई ग्रोथ लिमिटेड. करंट मार्केट वैल्यू दी है ₹50,000 करोड़ से. करंट EPS है ₹600. प्राइस अर्निंग रेशियो है 25 और आपने बायबैक करने हैं 20% ऑफ शेयर्स और उसके लिए आपको प्रीमियम जो भी पे करना है बायबैक के लिए उसके लिए हम लोन रेज करेंगे 16%. एंड कंपनी का टैक्स रेट आपको दिया है 30% एंड पोस्ट बायबैक मार्केट प्राइस शुड बी ₹10,000 विच इज कॉल्ड P1. सो लेट अस सी नंबर 1. दे आर आस्किंग यू व्हाट इज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन लोन. तो जो आप लोन रेज करेंगे उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना पे करना है. तो इसके लिए आपका फार्मूला बन जाता है ये वो P1 होता है आपका EPS इंटू प्राइस अर्निंग रेशो. ये जो P1 आपको दिया है तो इट मीन्स प्राइस अर्निंग रेशो सेम है. P1 आपको मेंशन किया है उससे EPS निकल जाएगी. तो EPS आपके बायबैक है आपकी 10,000/25 जिसे 400. अब देखिए फार्मूला अप्लाई करके EPS का उसका फार्मूला बन जाएगा EPS आफ्टर बायबैक 400 इज इक्वल टू
प्रेजेंट नंबर ऑफ शेयर इनको प्रेजेंट ईपीएस, ये होगी करंट अर्निंग्स। उसमें से आप माइनस करेंगे जो आपने लोन रेज किया है बायबैक के लिए, उसका कोई इंटरेस्ट पे करोगे तो माइनस करके हमने इंटरेस्ट उसको बना लिया आफ्टर टैक्स। डिवाइड कर लीजिए अब आप व्हाट विल बी नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बायबैक। कुछ मीन्स पहले कैलकुलेट करके हैं प्रेजेंट शेयर कितने हैं आपके, तो आप देखिए करंट मार्केट प्राइस आपको दिया है, उसका फार्मूला है ईपीएस इनटू प्राइस अर्निंग रेशियो। ईपीएस है 600, प्राइस अर्निंग 25, तो आपका करंट प्राइस आ गया 15,000। उससे आपके प्रेजेंट नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। टोटल मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय करंट प्राइस विच इज 15,000 करोड़ अपॉन 15,000 प्राइस है, जिसे 1 करोड़ आपके नंबर ऑफ शेयर्स आ गए हैं। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा कितना है, वो है 20% शेयर हमने बायबैक करनी है। तो इतनी नाउ अब अप्लाई किया फार्मूला 400 जो आपका है ईपीएस आफ्टर बायबैक इज इक्वल टू प्रेजेंट नंबर ऑफ शेयर है 1, करंट ईपीएस है आपकी 600 रुपीज माइनस इंटरेस्ट को बना लिया हमने आफ्टर टैक्स, इंटरेस्ट इनको 0.7 है। नीचे नंबर ऑफ शेयर आ गए 1 माइनस 0.20 जो आपने बायबैक कर लिए हैं। तो आप देखेंगे इसको सोल्व कीजिए कि ये 0.8 इंटू 400 इंटू 0.8, 600 विल गो हेयर माइनस 600 एंड डिवाइडेड बाय 0.70, ये भी नेगेटिव है। तो दिस इज कमिंग 320, 600 माइनस 320, दिस इज कमिंग अवर 280 एंड डिवाइडेड बाय 0.7, so दिस इज कमिंग ₹400 करोड़ से। तो ये आपका इंटरेस्ट आ गया जो आप पे कर सकते हैं फॉर बायबैक। तो सेकंड ईयर आस्किंग व्हाट इज अमाउंट ऑफ लोन टू बी रेज, कितना लोन आपने अब रेज करना है, उसका फार्मूला बन जाएगा जो इंटरेस्ट है उसको आप डिवाइड कर लीजिए, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16%, तो दिस इज कमिंग 2500 करोड़ से। तो ये आपका अमाउंट ऑफ लोन आ गया है। अब ये लोन आपने किस लिए यूज़ करना है, प्रीमियम पे करने के लिए। नाउ ये आस्किंग व्हाट इज बायबैक प्रीमियम पर शेयर, तो ये टोटल प्रीमियम है, डिवाइड कर दो जितने शेयर बायबैक कर रहे हैं 0.20 से, तो प्रीमियम पर शेयर आपका आ गया ₹12,500। तो नेक्स्ट ईयर आस्किंग व्हाट इज बायबैक प्राइस, बायबैक प्राइस हो जाएगा जो करंट प्राइस है प्लस प्रीमियम जो आपने पे करने हैं। 15,000 करंट प्राइस आपने कैलकुलेट किया था, प्रीमियम है 12,500, सो दिस इज कमिंग 27,500 के बायबैक प्राइस। तो नेक्स्ट ईयर आस्किंग व्हाट विल बी मार्केट वैल्यू कंपनी आफ्टर बायबैक, उसका फार्मूला बन जाएगा प्रेजेंट शेयर माइनस कर दो जितने बायबैक हो गए हैं इनको प्राइस आफ्टर बायबैक। प्रेजेंट शेयर आपके 1 करोड़, बायबैक के शेयर है 0.2 करोड़, और प्राइस जो है आफ्टर बायबैक वो आपको पहले ही मेंशन किया है P1 ₹10,000। सो 0.8 इंटू 10,000 ₹8,000 करोड़ विल बी मार्केट वैल्यू कंपनी आफ्टर बायबैक। Next we have a topic of convertibles. Convertibles can be convertible debentures or convertible preference shares. In case of convertible, we have to determine what is the intrinsic value of convertible, which is taken as a higher value as a pure debt alternative or equity alternative. So value of debt alternative is present value of future benefits in the form of interest or dividend plus redemption value, and value of equity is number of shares receivable on conversion times current market price of share. So then we can determine value of convertible which is taken as a higher of value as a debt alternative or value as a equity alternative. Convertibles are securities, maybe debentures or preference shares that are converted into equity shares in future. Convertibles may be partly convertible or fully convertible. It means in case of partly convertible, some amount is converted into equity share, and in case of fully convertible, full amount of face value is converted into equity shares. So now what is the objective of investor? Objective of investor is to determine intrinsic value of convertible. So first let us see valuation of partly convertible debenture or partly convertible preference share. So in case of a partly convertible, so we get interest or dividend up to redemption, plus we get some redemption value, and plus we get some equity shares. So we can say that the value of a partly convertible debenture or partly convertible preference share is equal to summation of present value of interest or dividend plus present value of market price of shares received, कि जो भी शेयर्स आपको रिसीव होंगे ऑन कन्वर्जन उनकी मार्केट प्राइस आपको देखना है और उसकी प्रेजेंट वैल्यू प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन अमाउंट ऑन मैच्योरिटी, रिडेम्पशन अमाउंट में भी विद प्रीमियम आल्सो। तो सेकंड वी हैव वैल्यूएशन ऑफ फुली कन्वर्टिबल डिबेंचर और फुली कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स।
तो इन केस ऑफ फुली कन्वर्टिबल सिक्योरिटी इन्वेस्टर है कि टू ऑप्शन, इन्वेस्टर के पास दो ऑप्शन होती है नॉर्मली। नंबर वन इज इन्वेस्टमेंट विच इज कॉल्ड डेट ऑप्शन। तो इट मीन्स इन्वेस्टर कैन होल्ड सिक्योरिटी टिल मैच्योरिटी। उस केस में आपकी सिक्योरिटी जो है ये कन्वर्ट नहीं होगी इक्विटी में, एंड यू विल गेट इंटरेस्ट, डिविडेंड और रिडेम्पशन वैल्यू। सेकंड ऑप्शन है जो कन्वर्जन विच इज कॉल्ड इक्विटी ऑप्शन है। So in this case, security converted into equity shares on maturity or before maturity. Full amount means full face value is converted into equity. So in this case, how we determine intrinsic value of fully convertible debenture or fully convertible preference share? So this is taken as a higher of two values. Number one, investment value. Second is conversion value. It means if security is held till maturity as investment, what is its value? और इफ सिक्योरिटी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी बट इज इट्स वैल्यू। तो दोनों में से जो भी हायर होगी वो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू बन जाएगी कन्वर्टेबल की। तो नाउ लेट अस सी हाउ टू डिटरमिन इन्वेस्टमेंट वैल्यू विच इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रेट वैल्यू और दिस इज कॉल्ड डेट ऑप्शन। तो दिस वन इज इक्वल टू वैल्यू एज डेट ऑप्शन, इसको वीजी से हम शो कर रहे हैं। समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड, तो जब तक आप इसको होल्ड करेंगे टिल मैच्योरिटी जो भी इंटरेस्ट मिलेगा या डिविडेंड उन सबकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन अमाउंट। दिस इज सिंपली वैल्यू ऑफ डिबेंचर इफ इट इज हेल्ड टिल मैच्योरिटी। तो जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शन या डेट ऑप्शन। तो सेकंड कैलकुलेट करेंगे हम कन्वर्जन और इक्विटी वैल्यू इफ अवर सिक्योरिटी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी। तो दिस इज कॉल्ड इक्विटी वैल्यू विच इज डिनोटेड बाय वीई। तो उसमें आपको देखना है कि जब आपकी सिक्योरिटी कन्वर्ट होगी इक्विटी में उसके बेस पे कितने शेयर्स आपको मिलेंगे विच इज कॉल्ड कन्वर्जन रेशो, और उनका आज की डेट में कितना प्राइस है शेयर का। तो कन्वर्जन रेशो को हम एम से डिनोट करते हैं, इनको करंट प्राइस है आपका पी नोट। तो बल्कि कन्वर्जन रेशो मीन्स नंबर ऑफ शेयर्स रिसीव्ड ऑन कन्वर्जन। तो ये किस तरीके से डिटरमिन होते हैं जिसको हम एम से डिनोट कर रहे हैं। तो जो फेस वैल्यू सिक्योरिटी है उसको डिवाइड कर लीजिए, किस प्राइस पे आपको शेयर रिसीव होगा कन्वर्ट होगा उसको कहते हैं कन्वर्जन प्राइस ऑफ सिक्योरिटी। तो फार्मूला ही बन जाते हैं, फेस वैल्यू एफ है, कन्वर्जन प्राइस है आपका पी सी। सपोज चलो 100 का डिबेंचर है, 25 रुपीज़ में आपको एक शेयर मिल रहा है, तो कन्वर्जन रेशो बन जाएगी आपकी 100.25 विच इज 4। तो उस 4 को मल्टीप्लाई कर दो, आज जो करंट प्राइस है शेयर का वो आपकी बन जाएगी इक्विटी वैल्यू या कन्वर्जन वैल्यू। Again we can take higher of these two values, वो आपकी बन जाएगी इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ फुली कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। तो थर्ड समटाइम ये आस्क हाउ मच कन्वर्जन प्रीमियम और डिस्काउंट, कितना प्रीमियम या डिस्काउंट चल रहा है। प्रीमियम या डिस्काउंट को क्या कि मार्केट प्राइस आपका हायर है इक्विटी वैल्यू से या लोअर है। सो इफ मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इज मोर देन इक्विटी वैल्यू तो दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन प्रीमियम। और अगर आपका मार्केट प्राइस कम है तो वो माइनस में आएगा आंसर, तो वो डिस्काउंट बन जाएगा। So we can also calculate परसेंटेज ऑफ प्रीमियम और डिस्काउंट। फार्मूला है प्रीमियम या डिस्काउंट जो भी आपने कैलकुलेट किया है उसकी परसेंटेज हम कैलकुलेट करके हैं एज कम्पेयर टू इक्विटी वैल्यू। देखिए आपकी कन्वर्जन हो रही है तो उस केस में कितना प्रीमियम डिस्काउंट है ये आपकी परसेंटेज आ जाएगी। तो नेक्स्ट कन्वर्जन पैरिटी प्राइस जिसको पी एस से डिनोट करते हैं। So it is price of share at which equity value means conversion value becomes equal to market price of CD। तो आपका पैरिटी प्राइस डिटरमिन हो जाएगा। अब कन्वर्जन वैल्यू का फार्मूला है एफ अपॉन पी सी इंटू पी एस। इट मीन्स एफ अपॉन पी सी क्या है, देखो आपका ये हो गया कन्वर्जन रेशो इनटू जो प्राइस होना चाहिए शेयर का वो मिसिंग है, अब इसमें सो हो जाएगा इट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस ऑफ सी डी। सो एफ अपॉन पी सी डिवाइड हो जाएगा, सो पी एस इज इक्वल टू एम पी ऑफ सी डी। मार्केट प्राइस कितना है सी डी का डिवाइडेड बाय कन्वर्जन रेशो। तो एफ अपॉन पी सी क्या है, ये है आपकी कन्वर्जन रेशो। मार्केट प्राइस ऑफ सीडी को डिवाइड कर दो, जितने शेयर्स आपको मिलेंगे ऑन कन्वर्जन वो आपका पैरिटी प्राइस बन जाएगा जिस प्राइस पे दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वी हैव परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क। सो इट रेफर्स टू रिडक्शन इन मार्केट प्राइस ऑफ सीडी इफ इट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी। देखिए आपका कन्वर्टेबल सिक्योरिटी जो है वो इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होती है तो उसमें कितनी रिडक्शन हो सकती है। तो इट मीन्स जिसे गार्ड परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क को फार्मूला बन जाएगा मार्केट प्राइस ऑफ सीडी माइनस वैल्यू ऑफ डेट। तो देखिए इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होगा फिर आपको डेट ऑप्शन लेना पड़ेगा, उसकी जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कीजिए और जो डिफरेंस है देखिए मार्केट प्राइस आपका हायर है तो डिफरेंस जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि वो डाउन साइड रिस्क है और उसकी परसेंटेज आ जाएगी विच रिस्पेक्ट टू वैल्यू है कि डेट ऑप्शन टाइम्स 100।
which is called a percentage of downside risk. So now we are doing one example on convertible bond. So let us see data given in this example. So we are given Galaxy Limited has issued 12% convertible bond of rupees 250 with 3 years maturity, and the bond will be converted into 20 equity stocks on maturity, and current market price of stock is rupees 12 and current market price of convertible bond is rupees 265. The market rate for return on similar non-convertible bond is 15%. जिसे क्या था और आपको कैलकुलेट करना है स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, वैल्यू, कन्वर्जन प्रीमियम और डिस्काउंट, परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क एंड कन्वर्जन पैरिटी प्राइस से। तो लेटेस्ट ही डाटा आपको दिया है, गैलेक्सी कंपनी है, 12% कन्वर्टिबल बॉन्ड में इशू कर रखा है, 0 पीरियड में फेस वैल्यू 250 है, करंट मार्केट प्राइस है कन्वर्टिबल बॉन्ड का 265, रिमेनिंग मेच्योरिटी आपको दी है 3 ईयर्स, कन्वर्जन रेशो आपको मिलेगी 20 शेयर से जब बॉन्ड कन्वर्ट होगा, और मार्केट प्राइस है शेयर का प्रेजेंटली P0 ₹12 और मार्केट की रिक्वायर्ड रिटर्न है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से 15%। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करनी है स्टेक वैल्यू ऑफ बॉन्ड। इट मीन्स इफ बॉन्ड इज नॉट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी या कन्वर्टेड इस वैल्यू विच इज कॉल्ड वैल्यू है कि प्योर डिबेंचर, उसको वैल्यू रिजेक्ट भी कहते हैं। तो उसमें हम लेते हैं एनुअल इनकम कितनी है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू, तो ये हम ले रहे हैं 15% के बेस पे 3 साल का एनुअल फैक्टर लग जाएगा, रिडेम्पशन होगी लास्ट में और इसके ऊपर आ जाएगा 15% फॉर 3rd ईयर पीवी फैक्टर। तो जिसे एनुअल इनकम है 250 इंटू 12% विच इज ₹30 प्लस ये एनुअल फैक्टर है 3 साल का 2.283 प्लस लास्ट में रिडेम्पशन वैल्यू आएगी विच इज इक्वल टू फेस वैल्यू और ये पीवी फैक्टर है 3rd ईयर का। तो मल्टीप्लाई कीजिए, आपकी वैल्यू है 68.49 प्लस 164.50 विच इज टोटली 233। तो सेकंड आपको कैलकुलेट करनी है कन्वर्जन वैल्यू विच इज कॉल्ड स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड। इट मींस इफ बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू इक्विटी देन हाउ मच इज इट्स वैल्यू। किसी आल्सो कॉल्ड इक्विटी वैल्यू, उसको हम जनरल कहते हैं VE से फार्मूला बन जाएगा कन्वर्जन रेशो इनटू करंट मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक। कन्वर्जन रेशो है कि आपको कितने शेयर्स मिलेंगे, 20 शेयर्स आपको मिलेंगे व्हेन बॉन्ड इज कन्वर्टेड, और करंट प्राइस है शेयर का ₹12। सो कन्वर्जन वैल्यू इज ₹240। तो थर्ड भी है टू कैलकुलेट कन्वर्जन प्रीमियम और डिस्काउंट। प्रीमियम होता है जब मार्केट प्राइस जो है कन्वर्टिबल बॉन्ड का कन्वर्जन वैल्यू से ज़्यादा होता है, डिस्काउंट होगा जब मार्केट प्राइस कम होगा। तो उस केस में मार्केट प्राइस आपका 265 है, इक्विटी वैल्यू है 240, सो देयर फॉर इट इज प्रीमियम। सो प्रीमियम इज ₹25 पर कन्वर्टिबल बॉन्ड। और इसकी आप कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज कितना है प्रीमियम का। तो उसका फार्मूला है, प्रीमियम को हम डिवाइड करेंगे इक्विटी वैल्यू से कन्वर्जन वैल्यू इनटू 100, सो जिसे 25/240 को 100 10.42%। तो फोर्थ हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क। डाउन साइड रिस्क का मतलब होता है कि इफ बॉन्ड इज नॉट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी एंड इट इज हेल्ड टिल मैच्योरिटी, तो उस केस में जो वैल्यू मिलेगी आपको एज ए डेट और उसमें कितना लॉस हो रहा है एज कम्पेयर टू मार्केट प्राइस। तो उसका फार्मूला बन जाता है परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क की करंट मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टिबल बॉन्ड माइनस वैल्यू एज डेट अपॉन वैल्यू एज डेट इनटू 100। तो जिस करंट मार्केट प्राइस है 265, वैल्यू की डेट हमने कैलकुलेट की थी 233 अपॉन 233 टाइम्स 100, जिसे 13.73% आपका परसेंटेज है डाउन साइड रिस्क। तो नेक्स्ट ईयर आस्किंग बची कन्वर्जन पैरिटी प्राइस। पैरिटी प्राइस होता है कि व्हाट शुड बी प्राइस ऑफ शेयर सो दैट अवर कन्वर्जन वैल्यू बिकम्स इक्वल टू करंट मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टिबल बॉन्ड। अब जो कन्वर्जन वैल्यू जिसको इक्विटी वैल्यू भी कहते हैं उसका फार्मूला है कन्वर्जन रेशो इनटू प्राइस ऑफ शेयर। अब ये मिसिंग है प्राइस कि कितना प्राइस होना चाहिए, सो डैट इट इज इक्वल टू करंट मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टिबल बॉन्ड। तो प्राइस आ जाएगा आपका PS जिसको हमने नाम रखा है पैरिटी प्राइस, जिसे कि करंट मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टिबल बॉन्ड अपॉन कन्वर्जन रेशो। मार्केट प्राइस लिया है 265, रेशो है आपकी 20, सो दिस पैरिटी प्राइस इज कमिंग ₹13.25। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो, क्लिक ऑन द बेल आइकन so you don't miss out on any new updates.